So content creators also have to think about jobs. I think so. For a fixed income. फिर next day again we sat on the same thing और plan किया कि क्या कर सकते हैं. Yeah. So I think this things lined up automatically. ये पाप पुण्य का हिसाब एक हुक आया. फिर उसके बाद और एक हम लोग का हुक लाइन था, आपके पापों को कम कीजिए, मैं जो पुण्य आज कर रहा हूँ आप उसे कल कीजिए. There were many examples, ऐसा मुझे लगता है कि जहाँ हम लोग ने मदद कर डाली थी, but I think that was not fair. मतलब ऐसा मतलब वो लोग वैसे नहीं थे. So you think वो थोड़ा scammy था? हाँ, वैसा भी situations, मतलब एक example देता हूँ. So guys, look out in the description for anything. There will definitely be something there. And please do something good. हाँ, बाथरूम के टाइम, हाँ वो बाथरूम में पता नहीं जादू है यार मेरे बाथरूम में. वो उधर सब आइडियाज आ जाते हैं somehow. मैंने वो ब्रांड किया ही नहीं था फिर उसके बाद. Have you ever thought मजे में if I become viral, life would be sorted? Honestly, I have. So today here with me I have Mayuresh, and he's a cricketer. You're also a content creator. He's also a philanthropist. He's a content creator again, and you're a comedian, I would say. Comedian? I don't know. It's risky to say that comedian. So how else would you describe yourself if you had to describe to somebody? Fun-loving person. That's nice. Very sweet, wholesome kind of way. Yeah. So welcome, Mayuresh. Today our episode is going to be all about content creation, philanthropy in the field of content creation. Can you explain me what is philanthropy? So that's more of like social work. Okay. Yes. So we're going into that as well. Okay. So let's go. We also have a few challenges in store for you. So okay. Watch out. After the 100-day challenge, this is this is your next challenge. Next challenge. Okay. दूसरा हिसाब. We'll see किसका हिसाब we'll be taking. Let's see if we can do that. Okay, so I want to know where your journey started, because what I've heard is that you started during lockdown, right? So where did that start? Can you walk me through it? How exactly you started with content creation? Okay, so content creation started in lockdown, but the things I used to post, it started from my college days, 11th standard basically. That is singing videos I used to post in lockdown. तो आप बजाते थे? हाँ, मतलब वो भी सीखा था घर बैठे बैठे, मतलब वो थाली बजाने से अच्छा बोला कि गिटार बजा लेंगे, तो वो सीख रहा था लॉकडाउन में. और कॉलेज डेज में आई यूज्ड टू गो फॉर सिंगिंग क्लासेस. ऐसे मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि एक करना है. स्ट्रक्चर्ड. हाँ, बस हॉबी एक डेवलप कर सकते, एक स्किल डेवलप कर सकते, तो सिंगिंग क्लास ज्वाइन किया था. तो उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो फिर वीडियोस में ट्रांसफॉर्म करने लग गया कि चलो एटलीस्ट कुछ तो हम लोग कर सकते हैं. तो गिटार बजाना सीखा, तो ऐसे ही नहीं गा सकता था. तो फिर वो धीरे धीरे करके 10-15 वीडियो के बाद फिर कॉमेडी कंटेंट का नीश चालू हुआ. एंड इट वाज नॉट प्लान, दैट वाज आल्सो नॉट प्लान. वो कैसा हुआ कि ऑनलाइन लेक्चर्स चालू होने वाले थे, कुछ तो नया था, तो सोचा हाउ विल दैट वर्क पर्टिकुलरली. तो वो सिर्फ एक इमेजिनेशन था और उधर से वो कंटेंट जर्नी चालू हुआ आई थिंक लॉकडाउन से. So you were saying कि you started in college. What were you doing in college time? What were you studying, pursuing? I was doing commerce. अच्छा, तो वो आपका सपना था at one point, or was it just ऐसे ही वैसे ही नॉर्मली कॉमर्स. हाँ, सब बच्चे फिलर होता है. हाँ, मतलब क्योंकि क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट में फोकस था तभी पूरा ऑल टाइम, तो सोचा था कि सबसे बेस्ट कॉमर्स ही रहेगा. अच्छा. तो इसीलिए वो कॉमर्स था. और फिर सिंगिंग हुआ और उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ तो ये सब हुआ. So do you still pursue cricket कि क्या है? नहीं, अभी क्रिकेट तो होल्ड पे है. So that was just beginning में ऐसा कुछ था? नहीं, बिगिनिंग नहीं. क्रिकेट मैंने आई थिंक 15 साल प्रोफेशनल क्रिकेट खेला. तो पर मेनली मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन में मेरे जो मेन ईयर्स थे वो निकल गए. दैट इज 2021 19 का वो जो पीरियड था. हाँ, प्राइम मतलब हाँ पीक था मे बी, वो निकल गया. सो दैट वाज नॉट मेंट टू बी, आई फील. एंड दिस हैपेंड. And if you had to describe maybe to somebody who's watching ki how you were when you were in school, were you that student who was always out of the class, or were you that student who was always punished again out of the class, or in all extracurriculars like how you are right now? No, you're basically in everything. Yeah. What were you? It was mixed, I feel. Okay. मस्ती भी उतना ही करता था, पर पढ़ाई के टाइम पे फिर पढ़ाई हो जाता था. अच्छा. ऐसा लगता, मतलब एग्जाम के टाइम पे फिर सिर्फ पढ़ाई. वैसा. तो मस्ती तो बहुत की आई थिंक. जो स्कूल से जो देख रहे हैं तो काफी मस्ती किए थे. मम्मी पापा भी स्कूल आए थे, प्रिंसिपल ने बुलाया था. क्या किया था आपने वो टाइम पे?
अरे यार क्या कांड थे। अभी एक फिगर ऐसा है ना कि मुझे ये सब बोलना नहीं है क्योंकि यंग ऑडियंस बहुत देखती है, पर कभी कभी ऐसा स्कूल से निकल के घर हाँ। चले जाता था बस, बाकी कुछ हाँ, ऐसा हाँ, गलत हाँ। चीजें नहीं। अगर कोई क्लास अच्छी नहीं लग रही है वो अगला मतलब लंच के बाद कोई हाँ। पीरियड ऐसा है कि जो उसमें बैठने को मजा नहीं आएगा, तो हम लोग दोस्त लोग सब घर चले जाते थे। अच्छा। तो वो थोड़ा एक दो बार हुआ था, पर फिर टीचर ने पकड़ लिया था उसके बाद। तो बंकिंग। बंकिंग हाँ थोड़ा सा ज्यादा नहीं पर थोड़ा हाँ। किया था, बट वो पकड़े गए थे हम लोग। तो फिर आ गए थे मम्मी पापा स्कूल में, और फिर बाद में कहा बताना नहीं है मुझे। तो ये कहानियां have they inspired your content in any way? Did you ever make school related content ऐसा कुछ? नहीं, आई थिंक स्कूल रिलेटेड कंटेंट इतना बनाया नहीं था मैंने कभी। एंड आपने कभी सोचा कि आई विल गेट इनटू कंटेंट क्रिएशन या मीडिया फील्ड पे? नहीं, कभी नहीं, एकदम नहीं था। कभी नहीं। मेरी बहन देखती थी हाँ। लॉकडाउन में, और उसके पहले वो व्लॉग्स देखती हाँ, थी। हाँ। तो मैं उसको बोलता था तू काय है भाई, दूसऱ्यांचं सगळं बघत असते, दूसरों के लाइफ में क्या देख रही है, वो क्या मजा आता है। और फिर अभी आप भी शुरू हो गए व्लॉग्स आपका। मैंने 5 दिन पहले ही देखा आपका होली का व्लॉग। हाँ, तो अभी मैं करता हूँ खुद। तो आई थिंक यू स्टार्टेड आल्सो विद मेकिंग व्लॉग्स विद योर सिस्टर एंड योर मॉम, राइट? लॉकडाउन द के टाइम पे। चैलेंजेस, हाँ, फैमिली कंटेंट तो काइंड वो ऑफ। स्टार्ट कैसे हुआ? वो तो मुझे तनिषा ने बताया, मेरी हाँ। जो बहन है उसने बताया कि हम लोग ये चैलेंज कर सकते हैं, मतलब यूट्यूब के लिए लॉन्ग फॉर्मेट जो वीडियोस होते हैं। तो उसने बताया था कि अगर इंस्टा पे यू आर डूइंग दिस, तो यूट्यूब ऑल्सो यू कैन स्टार्ट बाय पुटिंग अप व्लॉग्स, मतलब डेली का जो अगर तू रिकॉर्ड कर सकता है, डॉक्यूमेंट करके एडिट कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, इट वाज नॉट प्लान्ड। तो बस। So what would you say your strength is? Ki, is it the ideation part? Is it being on camera? What do you think is your strength in content creation? I think अभी के लिए the at least. execution mainly. अच्छा। I can direct well अभी। अभी हाँ, पहले नहीं था वैसे, पर अभी एक 4 साल 5 साल करने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि आई कैन डायरेक्ट द कंटेंट प्रीटी वेल। उसमें रहना मुझे पता नहीं, वो लोगों के ऊपर है, अगर उनको अच्छा लग रहा है देन दैट्स गुड, बट आई थिंक आई कैन डायरेक्ट द स्क्रिप्ट प्रीटी वेल, कि अगर ये फ्लो मुझे चाहिए तो मुझे पता है कि कैसे उसको निकाल के लेना है वैसा। Okay. So I did little bit stalking. Okay, I found your LinkedIn profile. LinkedIn profile, अच्छा, okay. I go till those ends. I don't even know. You have a LinkedIn profile. हाँ, पता है। I think last year को उसके पहले बनाया था, तो ऐसे ही देख रहा था कि क्या होता है। मतलब मुझे बोला था कि तू बना अगर किधर अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकता है वैसे। क्या प्रोजेक्ट्स के लिए सब? नहीं, जॉब के लिए। जॉब के लिए, ओह। हाँ। So content creators also have to think about jobs. I think so, for a fixed income, ना? Yeah. तो That's disappointing for the viewers who want to start something in content creation. I think you should have a backup. Yeah. No? Do you think so? Do you think that's one advice also you'll give to somebody who wants to pursue content creation? Yes, I think you should have something which is fixed, I feel. फिर वो small रहेगा फिर भी चलेगा, small amount. But एक fixed income, I think, stabilizes you. So then you can later on be creative. Creative. That's true. जहाँ आप safe लगते हो, right? That's when you can be creative. Exactly. हाँ, नहीं तो तो फिर आपका क्या था बैकअप ऑप्शन? बैकअप वैसे तो कुछ था नहीं, बट ब्रांड्स आ रहे थे मुझे अच्छे खासे, सो वो एक टाइम पे चल रहा था, पर मैंने सोचा कि अगर फ्यूचर में आए नहीं आए तो एटलीस्ट वी कैन ट्राई समथिंग लाइक दैट। तो इसीलिए वो लिंक्डइन था, बाकी उसका आगे कुछ हुआ नहीं, बस है वो। So what I was coming to was that I saw कि you have masters in advertising and media, entertainment media and all that. So why did you decide to take that up? जैसे मैंने बोला कि ग्रेजुएशन आई डिड फ्रॉम कॉमर्स, राइट, या, और लॉकडाउन के बाद ये हुआ। सो लॉकडाउन के बाद मुझे कुछ ब्रेक नहीं लेने का था, तो पढ़ाई चालू रखने का था। तो मैंने सोचा कि इसमें अगर आई एम बीइंग द फेस इन द फ्रंट ऑफ कैमरा, आई शुड नो व्हाट्स गोइंग ऑन बैक हैंड आल्सो। So that is the reason I did that master's का degree, which was entertainment, media and advertising. Was it helpful? I don't know. कुछ सीखा उससे? सीखने को तो ऐसा था, but I think वो एक पीरियड भी ऑनलाइन चले गया था, तो प्रैक्टिकली हम लोग ने ज़्यादा कुछ किया नहीं था। बट हाँ, इंडिया में ऐसा वो डिग्री सोसाइटी के लिए लेना पड़ता है, राइट। और घर पे भी फिर आई कुड हैव मतलब कन्विंस कर पाया कि चला तर माझ्याकडे मास्टर्सची डिग्री आहे तर ठीक है, सो दैट्स द रीजन। और उसमें भी अच्छा ही किया था।
Okay. हाँ तो personally would you recommend किसी को कि if they want to get into the field of media, should they look into the educational background as well? Should they try and get that theoretical knowledge? आपको क्या लगता है उसके बारे में? आई थिंक इट्स पर्सनल Personal हाँ मतलब choices. उन पे उनके ऊपर आई थिंक हाँ. अभी ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा है ज़्यादा है. तो हर एक का पसंद और नापसंद अलग अलग है Yeah. मुझे था कि मुझे पढ़ना तो है हाँ. तो मैंने वो किया और उसके साथ ही साथ मैं कॉलेज जब भी जाता था हाँ. तभी ढेर सारा कंटेंट बना के घर पे आता था सो कॉलेज का वो मास्टर्स करने का एक अच्छा था कि हाँ. उधर खेलने के लिए काफ़ी ऑप्शंस थे टेबल खेलने के टेनिस लिए, like? हाँ डेन था वो स्पोर्ट्स रूम काइंड ऑफ थिंग तो आई थिंक वो देख के मैंने एडमिशन लिया था What rich college was रिच this? नहीं मतलब ऐसा VSIT Wow. Oh, okay. सो इट वाज अ गुड कॉलेज Okay. एंड हर दिन मैं उसके लिए जाता था मतलब लेक्चर्स बैठता था फिर फिर टेबल टेनिस. टेबल टेनिस और वो पूल टेबल हाँ. और गेम्स काफी थे तो आई थिंक वो और फिर उसके बाद Okay. कंटेंट भी बनाना था अच्छा. तो वो कॉमेडी time पे फनी भी, okay. कंटेंट तो आप कैंपस में ही बना देते? कैंपस में ही बनाता था जो मिलता था उसके साथ बनाता था मतलब इतना सोचता ही नहीं था कि आज कौन है नहीं है हाँ. तो जो दोस्त लोग जो बने थे तो उनके साथ ही कंटेंट बनाते थे तो you never felt ऐसे shy when approaching somebody and asking them, hey, make one content with me? या on campus सबके सामने doing it? You know, lot of people have social anxiety अभी आजकल. ऐसे word ये लोग use करते हैं, right? I'm too socially anxious and all of that. तो what do you think? Have you ever felt that? पहले स्टार्टिंग में था शायद आई कुडंट फेस द कैमरा एट ऑल तो पर धीरे धीरे वो लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा मैंने खुद को ही बोला कि अगर तुझे करना है इसमें तो तुझे कैमरा मैं तो बैक कैमरा नहीं फेस करता था फोन का आई यूज्ड टू ऑलवेज रिकॉर्ड इन Front. हाँ सेल्फी कैमरा में Understood, yeah. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल वुड रिलेट टू दिस कि I agree. बैक कैमरा हम लोग को आदत नहीं है कि बेटा. कैसे दिखेंगे हम लोग मतलब तो वैसा तो धीरे धीरे वो किया उसके बाद जाके पर जब भी पब्लिक प्लेसेस पे करता था मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं था क्योंकि दोस्त लोग रहते थे हाँ. सो और तभी थोड़े फॉलोअर्स भी बढ़ गए हाँ. थे वो टाइम पे तो ऐसा लगता था इट्स फाइन इट्स अ जॉब टू डू इट Yeah. सो कर लेते थे और दोस्त लोग जो कॉलेज में थे आई थिंक दे वर यूज्ड टू सीइंग सच कंटेंट जो मेरा कंटेंट था तभी तो वो लोग भी काफी हेल्प करते थे सो ओवरऑल जर्नी में जितने लोग जुड़ रहे थे ना आई थिंक एवरीवन हैज हेल्प्ड मी समवेयर Yeah. टू मेक मी रीच वेयर आई एम नाउ That's amazing. I think it's really good and down to earth कि you acknowledge that as well. हाँ, मतलब कि जो भी आप हाँ, बने हो, जो there's भी so many people behind बहुत it. बहुत सारे लोग ऐसा हाँ. मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग थे हाँ. जिनका हाथ है मतलब क्योंकि कंटेंट मैंने कभी सोलो कंटेंट नहीं बनाया था हर बार एक फैमिली ड्रामा था मतलब फैमिली हो गया फिर कपिल कंटेंट रहेगा फ्रेंड्स का रहेगा तो देयर वर मेनी पीपल आई फील एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ देम फॉर बीइंग देयर So I could really relate to what you were saying with the camera, right? I hate using the back camera. I just cannot see it क्योंकि when you look at it, you feel your face is flipped, right? ऐसे Actually, एक side टेढ़ा है, एक side सीधा है, and you're like, what is this? Like it's so you get creeped out. ऐसा लग रहा है क्या डायन है सामने. It's like that. So even I prefer doing on the front camera, and I think a lot of people who are getting into content creation, that is also what they feel when they start. So what is something that you would tell them? You know, to just get out of that fear. Something that just you can do share. it just do it for I think for 1 month you'll feel the Yeah. same thing 2 months you'll feel the same thing but after a point हाँ. you get used to that कि अब हाँ मैं ऐसा ही दिखता हूँ या मैं ऐसा ही हूँ to accept that thing कि अब Yeah. हम लोग ऐसे ही है और ऐसे हम लोग अगर इसमें improve करेंगे so I think that would be helpful for them हाँ, and people are not really watching sometimes for your face. They're actually also watching for the content, right? yeah exactly Yeah, that makes sense. So now, not any more boring stuff. I don't want to go into education, all that. okay perfect Let's just go away from that. I want to know कि when did you decide to make that switch, you know, from comedy content and music and maybe even cricket to social related content? What was that switch that happened? again that was also not planned I feel and Okay. one of my friends told me कि अब 100 days अभी बाकी है साल खत्म होने को ये कौन सा साल का था? ये लास्ट ईयर 2024. हाँ. या 24 Yeah. सो तभी ऐसा हुआ कि ही सजेस्टेड मी कि वो तू मिनी व्लॉग्स अच्छा. चालू कर ठीक है. तो मैंने बोला कि मिनी देखेगा कौन मेरा मिनी व्लॉग क्योंकि आई हैव बीन क्रिएटिंग कंटेंट फनी कंटेंट सिंस 3 इयर्स Yeah. दैट टाइम 3 to 4 years तो मिनी व्लॉग मैंने कभी ट्राई नहीं किया था और मेरा लाइफस्टाइल ऐसा था भी नहीं कि शो ऑफ इतना कुछ करना है और 100 डेज के लिए हुक रख सकता हूँ ऑडियंस के लिए वैसा भी नहीं था
तो तभी पर मैंने सोचा था कि कुछ तो ऐसा करेंगे ना कि एक अच्छा काम अगर दिन में कर सकते हैं, और इफ यू कैन पोर्ट्रे दैट कि अगर जो 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 मैं आज जो कर रहा हूँ अगर आप वो कल कर सकते हो तो आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट। ऐसा कुछ तो एक रॉ आइडिया हम लोग को आया था। फिर नेक्स्ट डे अगेन वी सैट ऑन द सेम थिंग और प्लान किया कि क्या कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस थिंग्स लाइंड अप ऑटोमेटिकली। ये पाप पुण्य का हिसाब एक हुक आया, फिर उसके बाद और एक हम लोग का हुक लाइन था, आपके पापों को कम कीजिए, मैं जो पुण्य आज कर रहा हूँ आप उसे कल कीजिए। सो ये समहाउ स्ट्राइक हो रहा था धीरे धीरे धीरे। और फिर सोचा कि चल कल से तो हम लोग को करना ही है। सो देयर वाज नो बैकअप आल्सो एज सच फॉर लाइक 20-25 डेज देयर वाज नो बैकअप। मतलब जो शूट मैं आज कर रहा हूँ वो मुझे आज ही डालने का है। तो इट वाज अ स्ट्रगल फॉर मतलब एवरी डे। आज सुबह जाके दोपहर को जाके शूट करना और फिर उसी रात को हम लोग को डालने का है वैसे। तो स्टार्टिंग में तो इतना चल नहीं रहा था ऑनेस्टली, क्योंकि फॉलोअर्स के लिए भी कुछ तो नया था। ये क्या शिफ्ट हो गया है अचानक से। तो द व्यूज आल्सो मतलब अभी नॉर्मल कॉमेडी कंटेंट को अगर मिलियन जा रहे हैं या 500 के जा रहे हैं तो इसको 20K और 30K के ऊपर नहीं जा रहे थे मतलब ये कंटेंट पे व्यूज। और बाकी के लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई तू क्या कर रहा है, व्यूज का कंपैरिजन देख, अभी क्या 10 दिन हो गए 12 दिन हो गए व्यूज ही नहीं आ रहे, 20 दिन हो गए व्यूज आ ही नहीं रहे उस कंटेंट पे। मतलब हार्डली 100 के टच भी हो रहा था, वैसा भी नहीं हो रहा था। बट अभी मैंने सोचा था एक बार मैंने कमिट किया तो फिर आई एम नॉट गोइंग बैक। हाँ, तो चालू रखा। एक डे 28 पे थिंग्स चेंज्ड। मुझे एक आइडिया है कि लोगों को क्या अच्छा लग सकता है। What do you think लोगों को? हाँ, आई थिंक दिवाली का टाइम था तभी। और एक आजी से मैंने दियाज खरीदे थे। तो वो फिर मैंने आपको बताया ना एग्जीक्यूशन और डायरेक्शन मेरा अच्छा था। तो मैंने सोचा कि अगर इफ दिस इज नॉट वर्किंग विल चेंज द एग्जीक्यूशन। वीडियो सेम रखते हैं, मिनी व्लॉग को थोड़ा सा कम कर दिया और जो पार्ट था अच्छा काम करने का वो थोड़ा सा ज्यादा रख दिया। तो उसका एडिटिंग वगैरह वो सब चेंज करके दैट वीडियो वर्कड वेल। और तभी से फिर देयर इज नो स्टॉपिंग। आई थिंक वो फिर ग्राफ बढ़ते गया। तो दिवाली में आई गेस 2 ही दिन में आई थिंक फ्रॉम 100K to 200K जल्दी हो गए थे। और फिर 200 से 300K हो गए। तो वैसा I think that's what people can learn from this also very well is कि don't just give up a good idea essay. It's always about the way you execute it. Exactly. What can you change about the whole thing? What can you do different? लोग सोचते हैं कि एल्गोरिदम काम नहीं कर रहा है, मतलब कोई देख ही नहीं रहा है मेरा कंटेंट। वी ऑलवेज कंप्लेन राइट कि फॉल्ट उनमें ही है। बट आई थिंक इफ वी सर्च विद इन आवरसेल्व्स कि अब अगर ये नहीं काम कर रहा है, इफ वी कैन चेंज अ बिट, अगर हम लोग खुद से ही सोच रहे कि नहीं फॉल्ट मुझ में ही है और हम लोग उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, आइडिया लेट इट बी द सेम बट इफ यू कैन चेंज अ बिट तो आई थिंक पीपल विल आल्सो चेंज। क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया कि वो मिनी व्लॉग नहीं है, ये कुछ तो सोशल वर्क जैसा आपने बोला कि इट इज दैट काइंड ऑफ अ थिंग। एंड देन आई गॉट अ न्यू ऑडियंस ऑल टुगेदर। तो दैट हेल्प मी अ लॉट कि अब वो जो पाप पुण्य का ऐसा वो जो टैगलाइन था आई थिंक दैट वाज सुपर हिट। Yeah, I think it was a genius idea, marketing wise. हाँ, मतलब लोगों को भी ऐसा लग रहा था अरे क्या है पाप पुण्य का हिसाब, मतलब एग्जैक्टली क्या। और वो जो मैं वो बोल में वो चिट्स डालता था, आई थिंक दैट वो सब वीडियो के एंड में डालता था। तो वो भी एक लोगों को क्यूरियोसिटी था कि क्या है एग्जैक्टली। मतलब मैंने एंड तक कुछ उसमें बताया नहीं क्या था क्या, बट हर टाइम लोग पूछते थे कि वो क्या डाल रहे हैं। तो वो पुण्य का एक तेरा हर दिन का जो पुण्य आप करते हो उसका वो मतलब मैं लिखता था और उसमें वो डाल देता था कि आज क्या किया वैसे। So that was that simple. So have you ever sat down, opened everything up just to take a glimpse? नहीं वैसा नहीं कुछ किया मैंने। कुछ नहीं किया ऐसे। So we were talking about you mentioned algorithm, कि blaming algorithm. You think that's a thing like algorithm at all? वो matter करता है क्या आजकल? It is I think mainly on the content. Okay. If the content is good. And what is good according to you? Good मतलब अगर आपको आपकी ऑडियंस पता है कि मेरी ऑडियंस इज फॉर एग्जांपल से दे आर हियर फॉर जिमिंग वीडियोस या मोटिवेशनल वीडियोस, तो कल उठकर आप अगर आप लाइफस्टाइल के अगर कुछ डालोगे या मेकअप का डालोगे तो वो नहीं देखेंगे तो एंगेजमेंट नहीं आएगा, इंस्टाग्राम पुश नहीं करेगा। सो दैट बिकम मतलब वो दैट इज नॉट गुड फॉर देम। द कंटेंट हैज अ डिफरेंट मार्केट ऑल टुगेदर, क्योंकि देखो लाइफस्टाइल हो या सब कंटेंट के लिए देयर इज अ मार्केट, यू नीड टू फाइंड व्हाट्स अ मार्केट। तो अगर वैसा ही सेम चीज़ मेरे लिए हुआ था, आई थिंक जब भी मैंने चालू किया था तभी मैं कॉमेडी और रिलेटेबल कंटेंट डालता था। तो मैंने
उठ के डायरेक्ट मिनी व्लॉग्स डालना चालू कर दिया, Correct, 100 डे चैलेंज, सो ऑडियंस कुडंट रिलेट, तो वो वीडियोस मेरे वर्क नहीं कर रहे थे. बट आफ्टर अ पॉइंट जब भी मुझे ऐसा लगा कि हाँ आई एम बिल्डिंग न्यू बेस नाउ, क्योंकि पूरा बेस ही चेंज हो गया मेरा. तो आफ्टर 28 days पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग कि हाँ बाबा ये कुछ तो अलग कर रहा है, और आई थिंक आई लाइक दिस, सो न्यू फॉलोअर्स आने लग गए अकाउंट पे. तो उसके बाद वो वीडियोस चलने लगे. सो कंटेंट समटाइम्स इज गुड, इट इज जस्ट कि हम लोग को अब तक अपना ऑडियंस नहीं मिला है, नीश ऑडियंस नहीं मिला है. ओके, ऐसा होता है ना कि हम मेरे पेज पे वो वीडियो चल नहीं रहा है, और कोई रैंडम पेज पे जिसके 500 फॉलोअर्स भी नहीं है उसके पेज पे वो वीडियो चल जाता है. ऐसा बहुत बार होता है कि इफ यू हैव 10K फॉलोअर्स, कंटेंट आपका है, आपने डाला, वो नहीं चला, सम रैंडम पेज पोस्टेड सेम वाला जो है, सेम कंटेंट कॉपी करके पर वो चल रहा है. हाँ, तो वो चल रहा है. So somehow सब ऑडियंस के हाँ, somehow he found that audience for that video, ऐसा हो जाता है. So how would you describe your audience then? अभी जो आपने बनाया है. भाई fantastic. What's your TG? Fantastic audience I feel. Fantastic audience. हाँ, मतलब Music Army, I call them Music Army. Really? And I think they are really good. In terms of engagement, if you see, when I post videos, they comment एकदम. They're very supportive. I think constantly they will be there. I think that motivates me. अभी फिलहाल ना मुझे रिप्लाई करने को नहीं जम रहा है सबको, क्योंकि I think Instagram ने कुछ तो चेंज भी किया. जब भी रिप्लाई करता हूँ ऊपर जाता है कमेंट में, कुछ तो ऐसा अलग कर दिया है, तो वो तो होता ही नहीं है. अलग होता है. और पर मैं देखते रहता हूँ कमेंट जो करते हैं, एंड आई थिंक दैट मेक्स मी द मोस्ट हैप्पी. कब हाँ एटलीस्ट, और पता चलता है ना कि कौन फॉलोअर्स है जो कॉन्स्टेंटली हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, तो अपने हम लोग के भी ध्यान में रहते हैं कि अरे हाँ चल इसका नाम ये है, तो वैसा वैसा. सो इट फील्स गुड. आई थिंक ऑडियंस शुड कमेंट मोर ऑफन एंड शेयर, सेव, लाइक. Just a little note, please. It makes us happy, motivates us. It makes us want to keep going. Exactly. Yeah. And I think one more thing that had happened in between your journey was, I read somewhere that they started they asked for a donation fund to be set up, right? For your challenge. हाँ हाँ, मतलब वो लोग बोल रहे थे कि we want to donate for this particular challenge. Okay. मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैंने 20-25 दिन ऐसा कुछ डोनेशन किधर से लिया ही नहीं था. बट आफ्टर अ पॉइंट जब वो वीडियो अच्छा चलने लग गया, और बाद में लोगों ने क्या किया, 28 डे का चल रहा है तो बाकी सब वीडियोस देखे उसके पहले के, तो उन लोगों को वो आइडिया अच्छा लगा. सो पीपल वर लाइक कि आई वांट टू डोनेट फॉर दिस कॉज. पर हम लोग ने ज़रा, मतलब मैं और मेरे फ्रेंड्स जो थे, उन्होंने सोचा कि क्या लेंगे नहीं लेंगे, कैसा करेंगे, तो वो थोड़ा सा एक डाउट था मन में. पर एक के बाद एक ऐसा मैसेज आने लग गए, अभी भी आते फिलहाल. तो वी डोंट रिवर्ट टू एवरीवन, बट जितना हो सकता है ना हम लोग रिप्लाई, मैं ही रिप्लाई करता हूँ कि इफ़ यू वांट टू डोनेट, दिस इज द पर्टिकुलर प्रोसीजर, यू कैन डू दैट. एंड जस्ट एक नोट में लिखो कि पाप पुण्य का हिसाब के लिए, सो दैट एटलीस्ट आई नो कि ये फंड अलग ही है फॉर दैट पर्टिकुलर कॉज, और वो किधर और इस्तेमाल नहीं हो रहा है वैसे. तो बट आई फील कि वो जो डोनेशन था, दैट हेल्प मी अ लॉट ओवरऑल, की मदद थोड़ा सा ज़्यादा कर पाता था उसके बाद. क्योंकि इफ़ यू सी 30 डे के पहले हम लोग का बजट होता था 200 रुपया, 300 रुपया, मैक्स टू मैक्स 500 रुपया. जब भी डोनेशंस आए तभी वो मदद डायरेक्ट 500 से कभी कभी 5000 भी थी, 10,000 भी थी, तो वैसा. देन आई डेंट हैव टू थिंक कि अब करने से पहले अगर किसी को ज़रूरत है तो गिव देम एवरीथिंग दे वांट, तो वैसा. और वो इतना खुश होते थे, तो उसके बाद मैंने डोनेशंस फिर एक्सेप्ट करने चालू कर दिए. अगर मतलब आई डेंट फोर्स इट, मतलब किसी को जिनको मैसेज आ रहे हैं ना उनको ही. अभी भी फिलहाल मुझे नहीं लगता, मैंने अब तक स्टोरी पे भी डाला कि डोनेशंस हम लोग को इस पर्टिकुलर थिंग, हाँ मतलब हाँ वो खुद ही आ रहे थे, मतलब कमेंट्स से आ रहे थे या डीएम पे आ रहे थे. अगर कमेंट्स पे रिप्लाई नहीं कर रहा तो डीएम्स पे आ रहे हैं कि वी वांट टू डोनेट वैसा. तो आई थिंक नाउ अभी इसके बाद आई एम प्लानिंग कि अगर फंड रेस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कॉज के लिए, तो आई थिंक इसके आगे स्टोरी पे डालूंगा. बट अभी फिलहाल के लिए नहीं डाल रहा था, बट स्टिल इट वाज गुड. Okay, and how did you then find the people to help? That was like scouting every day. तो आप स्काउट करते थे, किसी ने आपको रीच आउट नहीं किया था एनी टाइम? रीच आउट एज इन पर्सनली किसी ने रीच आउट नहीं किया? दे फाउंड आउट कि यू आर डूइंग दिस एंड दे लाइक, हाँ वी आर गोइंग थ्रू दिस एज वेल, इज एनी वे दैट यू कुड हेल्प अस आउट, गिव अस अ शाउट आउट अबाउट आवर स्टोरी? होते थे ऐसे, बट अगेन टू क्या बोलते हैं, हम लोग को पता नहीं अगर वो सच है कि नहीं, राइट. क्योंकि अगर ऑनलाइन इफ यू गो टू सी, यू कैन डू रिसर्च अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. हम लोग का मतलब मेन ये पाप पुण्य का हिसाब का एक मेन मोटिव था कि
वो स्मॉल एक्ट जो है ना काइंडनेस के वो करो, आपके हिसाब से जितना हो रहा है ना उतना करो, मतलब डोंट गो टू डू वेरी बिग। हाँ मतलब वैसा था, क्योंकि मेरा टारगेट ऑडियंस था, मुझे यूथ को मोटिवेट करना था। इफ यू कैन गिव बैक टू द सोसाइटी इन सम वे, सो यू कैन डू दैट इन अ वेरी स्मॉल वेज, मतलब 10 रुपए हो जाए, 20 रुपए हो जाए, या एटलीस्ट सिर्फ बात करो, अगर पैसा नहीं देने का दैट्स फाइन, बात करो उनसे, इफ यू कैन गिव योर टाइम। तो वैसा था, तो आई थिंक दैट वाज द होल मोटिव, मतलब ऐसा मतलब फिर सोचा नहीं था इतना कि कितना आगे जाएंगे, तो वो जो डीएम्स पे आते थे वो इतना ध्यान नहीं दिया ऑनेस्टली। पर अगर आई थिंक 2-3 बार वो स्टोरी पे डालने के लिए लोग बोलते कि ही इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज और समथिंग, तो वो फिर हम लोग करते थे, क्योंकि उस पर अगर अगेन क्रॉस चेक करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, बट इफ यू थिंक कि अब जेन्युइन है तो आई थिंक वी यूज्ड टू डू दैट। क्योंकि ना सोशल वर्क में आजकल पीपल आर वेरी स्केप्टिकल, वो लोग सोचते हैं कि ये रियल है कि नहीं, तो हाउ डिड यू गाइज गो थ्रू दैट, राइट? क्योंकि यू वांट टू डू द राइट थिंग आल्सो, देयर इज दैट कि आपको करना है जो अच्छा है, बट how do you cross check, how do you make sure when somebody is getting into social work, that is something also that they try to look at. There were many examples, ऐसा मुझे लगता है कि जहाँ हम लोग ने मदद कर डाली थी, but I think that was not fair, मतलब ऐसा मतलब वो लोग वैसे नहीं थे। So you think वो थोड़ा स्कैमी था? हाँ, वैसा भी situations, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, एक ओल्ड अंकल थे, आई थिंक डे मुझे याद नहीं है, पर वो एक स्टॉल के इधर खड़े थे, कब से लोगों से पूछ रहे थे अगर दे सकते हैं, एंड ही वाज ब्लाइंड, चश्मा था, एक काटी थी वगैरह। तो फिर हम लोग ने, मैं और मेरा दोस्त हम लोग जा रहे थे उधर से, तो सोचा कि वी कैन डू समथिंग फॉर हिम, एटलीस्ट गिव हिम समथिंग। तो पूछा हम लोग ने कि किधर रहते हो, ये सब, तो बोले कि हम हैदराबाद से है और अभी इधर फैमिली के साथ रहता हूँ। ही वॉज क्वाइट ओल्ड। तो हम लोग ने सोचा कि क्या चाहिए आपको बताओ, मैं आपको ऑर्डर करके दे दूंगा। तो जो भी था वो उनको दिया, एंड तब भी मुझे ऐसा लगा, जब वो जा रहे थे ना करने के बाद, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। somehow after 10-15 days I saw that same man somewhere else, पूरा white shirt, white pant, and he was all fine, वो चश्मा वगैरह नहीं था, मतलब वो blind नहीं थे। so I was like भाई हे तेज होते। so sometimes it happens कि अगर ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, we can't verify every time, क्योंकि आप तो अच्छे मन से जा रहे हैं कि हाँ चलो अपन मदद करो, हम लोग मदद करते हैं, but every time it does not happen, but most of the times it happens. Or what were the times which were so genuine कि अभी भी you can still remember it and you felt like yeah, that was almost like God was there. I think God led me to this person. लताई करके एक vegetables जिनसे खरीदी किया था ना, I think we still have the bond, मतलब अभी भी हम लोग कॉल पे बात करते हैं। I think you had mentioned this in another interview ना कि you went to उत्तराखंड ऐसा कुछ, and उसने she called you and she was like आप कब आ रहे हो वापस, वही था ना? मतलब जाने से पहले मैंने उनको बताया था कि मैं जा रहा हूँ, so she was like की नीट जा आणि काळजी घे वगैरह, ठीक है। जैसे ही मैं वापस मुंबई आया, वो मॉर्निंग में she called me, तो आलास ना परत। So I went for 11 days, so but she still remembered कि अब आज येणार है। So that bond is totally different I feel, और अभी भी है, मतलब अभी भी she calls me, कभी मैं उधर से जा रहा तो I meet her, so वैसे। और मेरे बाद I think काफी लोग उनसे मिलने आने लग गए, and उनको गिफ्ट्स भी दे रहे हैं, उनको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, that is good in a way, but I think वो थोड़ा सा बैकफुट पे गए ऐसा मुझे लगता है। मतलब एक बार मैंने उनसे बात किया था, तो मुझे पहले समझ में नहीं आया कि क्या, बट शी वॉज वे अहेड ऑफ मी और अस, मैं बोल सकता हूँ कि उसको ऐसा लग रहा था कि अभी सब लोग आएंगे ना, फायदा उठाने आएंगे, ठीक है। तो वो उन्होंने मुझे ऐसा एक चीज बताया था कि आता मला जास्त लोक नको, तो मुझे ऐसा समझ में नहीं क्यों। हाँ, तो उसके बाद शी एक्सप्लेन कि ऐसा था, मतलब कैसा था, शी लॉस्ट हर सन, उसके बाद उसको किसी उनको ना वो चर्च में जो फादर्स वगैरह थे, दे हैड अलाउड हर टू सेल द वेजिटेबल्स वैसा सब, सो ओनली दे हेल्प्ड हर ओवर द पीरियड, और उसके अलावा ऐसा कुछ कोई आया नहीं था हु कैन यू नो थोड़ा सा पॉजिटिव उनको लाइफ में जो चाहिए था वैसा कुछ था नहीं। सो वी वर देयर, एंड वो पूरा बॉन्ड हम लोग ने क्रिएट किया था, सब बनाया, एंड उसके बाद काफी लोग आने लगे।
सो शी वांटेड टू स्टे अलर्ट कि अब अलग, कोण हाँ. दुसरा येऊन तो फायदा नहीं उठाना फायदा नहीं चाहिए. उठाना तो चाहिए, वैसे वे में वो कर रहे थे. बाकी शी इज वेरी जॉली पर्सन. एवरी टाइम यू गो शी विल हैव अ स्माइल. शी विल आस्क हाउ इज योर मदर, घरी सगळे कसे आहेत सगळे. सो वैसा. That's really sweet. So, I actually wanted to come to this point. जो people they take a lot of advantage of like how they say poverty porn या poverty tourism. For example, जो विदेश से लोग आते हैं, right? They come to धारावी, वो लोग पूरा टूर वूर करते हैं. उनके लिए it's like a I get to record it, मैं vlog बना देता हूँ ये सब. So for them it's just to show it, right? बराबर, okay. हाँ. तो how do you then make that balance अपने content में कि I am not doing it just to attract views. This is coming from a genuine place. Okay. आप वो बैलेंस कैसे करते हो? क्योंकि there will be critics, there will be people who will say नहीं ये तो बस मतलब they are taking advantage of the poor and making content. तो how do you say कि नहीं मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, I am doing it out of a good place. It started off मतलब वैसा ही चालू हुआ था कि अपने को इतना सोचना ही नहीं है लोगों के बारे में कि लोग क्या कह रहे हैं. क्योंकि इनिशियली तो लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे. सही है. ना तारीफ कर रहे थे, ना कंटेंट जा रहा था. सो वी डिडंट थिंक मच कि व्हाट पीपल आर सेइंग और क्या बोलेंगे. सही है. टच वुड वो सब अच्छा ही आ रहा था. रिस्पांस जो है कभी नेगेटिव में गया ही नहीं. एक आधा आता था बट आई थिंक जो लोग प्यार दे रहे वो उसको बराबर कर देते थे कि तुझे इतना है तो तू कर. इफ इट इज गुड फॉर मतलब वीडियो बना रहा है कोई तो एक वीडियो बना रहा है फॉर एग्जांपल और किसी की मदद हो रही है. द एंड रिजल्ट इज किसी का तो मदद हो रहा है. हाँ. So that is the end result. And if you were really doing it for the views, you know, taking advantage of the poor, why would you have continued after failing for so long, right? क्योंकि मुझे लोग बोल रहे थे कि तुझे मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं उसके पहले 28 डेज हो गए तुझे कुछ भी 100 के भी क्रॉस नहीं हो रहे. सो डेफिनेटली इट वाज नॉट फॉर द व्यूज बट वो चैलेंज भी लिया था. फिर सोचा और ऐसा हो रहा था ना 25 डेज कुछ बुरे नहीं थे. मुझे अंदर से मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा था कि क्योंकि अगर जब भी आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हो इफ यू गो एंड सिट एंड टॉक टू समवन जो अच्छा नहीं कर रहा है लाइफ में और उसके पास बहुत मुसीबत है, जब भी आप उनकी बात सुनते हो और कुछ भी वो जो शेयर करते हो वो आप सुनते हो ना तो दे हैव दैट सेटिस्फैक्शन कि हाँ कोई तो सुनने के लिए है. सो आई थिंक दैट थिंग्स चेंज्ड मी ऑल टुगेदर एज अ पर्सन. एंड आई थिंक पापुन्य 2.0 भी उसी के कारण है कि लेट्स जस्ट कंटिन्यू दिस जब तक हम लोग कर सकते हैं वैसा. तो आपको लगता है कि दिस इज लाइक अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट फॉर यू? स्पिरिचुअल नहीं बोल सकता हूँ बट यू गेट टू लर्न गुड थिंग्स इन अबाउट लाइफ. आई विल से अभी वो स्पिरिचुअल है कि वो पता नहीं मुझे बट you think you get to learn good things. That is the only thing. Why I brought it up because I think you mentioned also somewhere that you don't know how you got into it but it was because you felt like God somehow pushed you into this. मतलब अभी भी मुझे ऐसा लगता है I am just a medium. मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. अभी if you go to see that we have donations, we have everything, people are showing all the love. वो एक साइड पर रखेंगे और अभी अपने को तो अपना काम करना ही है ना. क्योंकि आई हैव स्टार्टेड दैट थिंग नाउ अभी करंटली. तो पीपल आर एक्सपेक्टिंग नाउ कि एवरी डे इट विल कम समथिंग और द अदर, एक नई स्टोरी रहेगी या समथिंग. तो वो मुझे काम करना है. मुझे कोई बता नहीं रहा कि तुझे करना ही है, कंपल्शन नहीं है बट आई फील अंदर से ही लग रहा है मुझे. सो आई थिंक इट्स गॉड्स प्लान में भी. जब भी चालू भी हुआ तो ऐसा लग रहा था कि उसका ये, क्योंकि मैंने नहीं किया था कुछ, मैंने प्लान भी नहीं किया था ना स्क्रिप्टिंग की थी उस पर्टिकुलर चीज़ की बट इट हैपेंड एंड इट हैपेंड फॉर गुड आई थिंक. And do you feel when people are commenting and when the youth are saying they are inspired, you did do it to inspire the youth, right? So do you ever get any messages from them that have really like impacted you? किसी ने कुछ बोला है जो you felt like yeah I'm doing the right thing, I should keep going? एक I think 8 साल का लड़का था. उसकी मम्मी ने मैसेज किया था कि माझा मुलगा तुझे व्हिडिओज बघतो and he questions us की मम्मी पप्पा आपण पण हेच करूया का. म्हणजे चला आपण पण हे करूया जो हा दादा करतोय. तो we should also do the same thing that भैया is doing. हाँ मतलब ये कितना अच्छा है वैसा. मतलब the work not me, the work is pretty good, it is bringing smile on everyone's faces वैसा. उसके बाद I think बहुत सारे मैसेजेस है कि कोई लोग जो बाहर गए है इंडिया में नहीं है तो वो लोग जब भी डोनेशंस देते हैं तो दे राइट अ वेरी गुड नोट ऐसा पैराग्राफ में कि मैं एक्चुअली अभी अब्रॉड में हूँ, इंडिया में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ
बट आई वांट टू गिव बैक टू द कंट्री, Yeah. मतलब जिधर से मैं हूँ. Yeah. सो दे सेंड डोनेशंस की बाबा तू तुझे आता नहीं कर, हाँ. मतलब अपने हाथों से मेरे तरफ से एक छोटी सी बेट तू हाँ. जाके कुछ तो मदद कर. एंड बहुत सारे मैसेज की यू मोटिवेट मी. और मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू गो टू माय टैग्स का I was सेक्शन just रहता going है, to say आपके टैग सेक्शंस में बहुत बहुत लोग सारे हैं. Yes. सेम वीडियोस है. Yeah. सो इट हैज मोटिवेटेड Correct. ऑडियंस, ऐसा मुझे लगता है कि एंड दे हैव स्टार्टेड द सेम थिंग. और काफी लोग हैं, मतलब आई कांट नेम देम ऑफ कोर्स, बट रोज के स्क्रॉलिंग में मैं देखता हूँ कि हाँ चल ये भी है वो भी है वैसा. So you feel very proud ऐसे. हाँ प्राउड नहीं, बट इट मेक्स मी हैप्पी. Yeah. या And related to this, I think recently you were awarded for social impact, Yeah, right? Real to Real. हाँ, दिवाली के time पे. Yes. So how was that experience like? वो कैसा था? How Again- did you get the message? How was the experience like? इंस्टाग्राम पे ही मैसेज आया था हाँ. कि देयर इज दिस पर्टिकुलर अवार्ड एंड इट इज फॉर सोशल इम्पैक्ट कैटेगरी. एंड तभी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं मेरा काम कर रहा था. आई वाज बिजी इन दैट 100 days, क्योंकि हाँ. जैसे बताया कि बैकअप ही नहीं था. Backup ही नहीं था. तो मेरे मन में वही था कि हाँ, जब daily. मैं हाँ अवार्ड लेने जाऊंगा तो फिर डालूंगा कभी शूट. तो कैसे ऐसा तो करना थोड़ा है, सा बैकअप हाँ. करके रखा था. और जब भी गया तो इट वाज गुड, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट अवार्ड एज अ क्रिएटर Yeah. ऑन दैट स्केल, ऐसा मुझे लगता है. Yeah. कि सोशल इम्पैक्ट का तो था, बट एज अ क्रिएटर ऑल्सो इट वॉज माई फर्स्ट अवार्ड. सो इट फेल्ट स्पेशल. You felt like, finally something is paid something is off. happening. It's Yeah, yeah. happening. हाँ. Yeah, and I think you'll have a lot more. I think you've just started, no? Yeah. अभी अपने. Hoping for the best. Yeah. So do you ever think, nahi, I want to start like some fund of my own, an NGO of my own, or do you think content creation has done a great job on its own to build a good, its own NGO almost आपके लिए? ऐसा प्लान तो है कि करना है, हाँ. बट अगेन वी डोंट हैव अ गुड रिसर्च फॉर दैट. Right. प्लान तो डेफिनेटली है, मैं ऐसा झूठ नहीं हाँ. बोलूंगा कि देयर इज अ प्लान टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग ऑन अ बिगर स्केल. Okay. लोग भी मुझे मैसेज करते हैं हाँ. कि कोई आजी या कोई ओल्ड अंकल अगर रह गए हाँ. जो रास्ते पे सो रहे हैं, तो कैन यू डू समथिंग फॉर देम एट Yeah. लीस्ट, कि उनको रहने के लिए एक अच्छा घर या उनके डेली एसेंशियल जो है वो अगर, हाँ. तो आई थिंक एनजीओ वुड बी द बेस्ट थिंग इफ वी कैन डू एंड Make it happen. या मेक इट फॉर देम बेसिकली, ऐसा मुझे लगता है. हाँ. And right now you're also doing Papunya 2.0. या सो दैट इज द सेम थिंग बेसिकली. Same thing. But that's not a 100-day thing. ना दैट इज नॉट अ चैलेंज, बस ongoing बस है. अभी चैलेंज हाँ. चैलेंज नहीं चाहिए बस, क्योंकि आई थिंक चैलेंज में ना काफी ड्रेन हो गया था. Yeah. फैमिली ऐसा टाइम क्यों? नहीं था, फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं था, खुद के लिए भी टाइम नहीं था. Okay. सो लंच करता था कभी 4 बजे 5 बजे, डिनर होता था 11 12. मुझे डेली का काम ऑलमोस्ट हाँ हो जाता मतलब था. वो तो मैं बोलता हूँ कि फैमिली को सल्यूट किया, बा उन्होंने हाँ. संभाल के लिया. मतलब हाँ. इट वाज डिफिकल्ट घर पे भी, कि तू क्या आ रहा है घर पे, जा रहा है फटफट कुछ कर रहा है, रूम में बैठ के एडिट कर रहा है. हाँ. क्योंकि एडिट भी मैं ही करता था, तो शूट पे जाओ एडिट करो. तो आप ही एडिटिंग करते हाँ, थे? हाँ, हाँ. ओके ओके. सो तो आपका कुछ टीम वीम वगैरह है? टीम वीम नहीं है, इट इज जस्ट फ्रेंड्स एंड मी, दैट्स इट. Okay, so you are also doing the direction, you are हाँ. also executing it. या हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि वाह. कोई प्रोफेशनल बंदा और है जो editing also. कैमरा हाँ. पकड़ रहा है, ऐसा भी नहीं है. ही इज वन ऑफ माय फ्रेंड्स. Yeah. सो कभी कभी ऐसा भी होता था, नॉट मेनी पीपल नो दिस, कि मैं अगर उनके साथ हूँ जिनको हम लोग मदद कर रहे हैं, तो अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो आई हैव टू टेल हिम ऑल्सो कि तू खाली बस ये एंगल पे ले, इधर से ले, टू कैप्चर देयर इमोशंस एज वेल. Yeah. क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है कि कैसा करने का है. हाँ. इट वाज ऑल 100 डे का चैलेंज इफ यू गो टू सी, हाँ. इट वाज वेल शॉट, नो डाउट. No, yeah. बट उसके पीछे जब भी बीटेस अपने को ही पता रहता है हाँ. कि इसके पीछे क्या हो रहा है, हाँ. सब लोग कैसे बैठे हैं, वो एंगल कैसा लेना चाहिए वैसा. Exactly, वही मेरे को पूछना है, वो एंगल सब कैसे लेते हैं? सो था थोड़ा सा डिफिकल्ट, हाँ. बट वी मैनेज्ड वेल. So there was no time where you had to script anything. नथिंग. and nothing. एंड द थिंग अबाउट दिस वाज कि मैं उनको बोलता था जाने से पहले की बघ ह्याच्यात रिटेक नाही आहे, हाँ. तू एकदा त्यांना दिलं तर ते झालं. म्हणजे मतलब रिटेक कर ही नहीं सकते इसमें. Okay. क्योंकि फिर हाँ, वो नेचुरल obviously, आएगा हाँ. ही नहीं. हाँ. सो इट वाज दैट थिंग कि अबा बी श्योर. और काफी टाइम ऐसा हुआ है कि माइक्स ना काम नहीं कर रहे, फिर फोन लॉक्ड हो गया है, तो हाँ. माइक काम ही नहीं कर रहे. वो भी हम लोगों ने लेट रियलाइज किया कि फोन जर लॉक असणार तर माइक काम Yeah. नाही करणार, यू हैव टू ओपन द फोन. तो Yeah. ऐसे सब एक्सपीरियंसेस हम लोग नहीं किए. फिर कुछ नहीं, हम लोग फिर म्यूजिक ऐड कर देते थे
क्योंकि वो कॉन्वर्जेशन Yeah. रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ऐसा काफी टाइम, ऐसे 3-4 बार हुआ था ऐसा, और जो अच्छे अच्छे कॉन्वर्जेशन थे वो नहीं रिकॉर्ड हुए थे। तो आपको कभी बुरा लगा लाइक स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था, हाँ। बट फिर मैंने मेरे दोस्तों से कुछ बातें की, तो वो बोले कि अबा वो सिर्फ तेरे लिए था, ऐसा समझ कि वो सिर्फ तेरे लिए था। हाँ, इट सही वाज था, नॉट yeah. फॉर द ऑडियंस देन। maybe it was just sent to you हाँ just हाँ for वैसे। you. So I think if you go to see in a positive way, that is this. A good way to see Yeah, it. yeah, yeah. So you mentioned your friends, family, all of that. So what sort of role have they played in this whole journey? फैमिली, जैसा मैंने बोला, इसमें काफ़ी सैक्रिफाइसेस थे। फैमिली टाइम Yeah. मेजरली, मतलब संडेज को अगर आपको किधर बाहर जाना है तो आप नहीं जा सकते, किधर आउटिंग वो लोग जा रहे हैं तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि यू हैव टू फिनिश दिस वर्क। हाँ. फ्रेंड्स का भी सेम था आई थिंक, और जितने लोग मेरे साथ थे जो शूट कर रहे थे, हाँ. वो सभी मेरे फ्रेंड्स ही थे। मतलब अभी फिलहाल इतने ही लोगों से मैं क्लोज हूँ, तो बाकी के भी जो लोग थे वो धीरे धीरे समझ रहे थे कि टाइम नहीं दे पा रहे, मतलब ये कुछ तो कर ही रहा है। सो आई थिंक सब एवरीवन प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल, और जिनको भी दुखाया रहेगा, हम लोग बोलते हैं ना कि हर्ट जो है, हाँ. तो उनको सॉरी, बट दिस वर्क टेक्स अ लॉट ऑफ, क्या बोलते हैं, टाइम जो रहता है ना। Sacrifice, हाँ, effort. मतलब आपका टाइम जाता है, हाँ. एफर्ट सैक्रिफाइस, मतलब आपके लिए दैट इज फाइन, क्योंकि Yeah. That's it your is- passion. हाँ, इट इज गिविंग यू द रिजल्ट्स व्हाट यू हाँ. वांट, इट इज कीपिंग यू हैप्पी, सो वो आप आपके लिए कर रहे हो। Yeah. बट पर लोगों को नहीं पता ना वो क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है उनको सॉरी एंड थैंक यू Yeah. ऑल्सो, कि अब समझ के लेने के लिए थैंक यू, वैसा। Okay, so we work with the youth a lot, and we feel like they would really connect with your story, and a lot of them are also your audience, I would say. Okay. We share similar audiences in that way. If you cross check, or if you हाँ. I think if you have stalked us pretty Yeah. well, Yes, so yes. that there is a thing on my page as well, that is हाँ. Yari Connect. Oh, You didn't check that? I didn't see that Yari Connect. So that is also, I think you have Y Connect. Why Connect? And that's Yeah. Yari Connect. So Yari Connect Tell me is about it. So it is also the same thing basically, हाँ. to connect with the youth, जो आपका है वैसा ही है हाँ. आई थिंक, पर एक दोस्ती यारी में थोड़ा सा, Okay. कि लोग बोलते हैं ना मेरे पास इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स है, फेसबुक पे इतने फ्रेंड्स है, पर रियलिटी में नहीं होते उतने। वी डोंट हैव समवन वी वांट टू शेयर समथिंग विद। That's So true, हाँ. I think that project is all together for that. अगर if we can connect all together and create a community of यार, मतलब यारी, Yaris. हाँ, तो वो उसके लिए है बेसिकली। So Yari Connect and Y Connect. What do you? I think we can collaborate on some lines. We would love to set up some sort of like fund, because we also have our own. We call them the Y Flock ambassadors. Okay. So these are macro influencers, very young students, everybody, the youth basically. Okay. And they basically work together in colleges, all of that. So we could send it across to them. This could maybe be some sort of, I don't know, related to some social cause, or maybe this could be also involved with Yari Connect. What do you think? I think that's amazing. Yeah, I think let's discuss this. Let's discuss Let this. me just finish this back and then and I think we'll talk about it then. because जब भी मैंने मेल में देखा ना हाँ. Y Connect, तो मुझे लगा कि भाई माझं काहीतरी आहे असं। Yari Connect. या हाँ so वैसे So how did you then come up with the idea of Yari Connect? यारी कनेक्ट, हाँ. इट वाज बेसिकली कि जब भी लोग बोल रहे थे ना मुझे हाँ. मिलना है आपसे, बात करना है, सो दैट टाइम थोड़ा सा अगेन फ्रेंड्स हम लोग सब बैठे थे, तभी हाँ. बोला कि ह्यांच्यासाठी काय करू शकतो, व्हाट हाँ. वी कैन डू फॉर दीज गाइज, These जिनको guys, सच्ची yeah. मिलना है, if they want to share something, we can Yeah. listen to them or something like that. Yeah. So this thing came up. Then is there some sort of donation link or something that you have at the moment that we can put right now and At share the it with moment- our audience too? At the moment, I don't have any link. So let's set something up. हाँ, so Let's I think discuss. I'm looking forward for that link or I something will. like that. We will do the talking. That would be कर लेंगे. fantastic. ठीक है. Okay, great. So guys, look out in the description for anything. There will definitely be something there, and please do something good. Do something good in society. I think there So, are many हाँ. people who are Interested also. genuinely asking Yeah. me for the link. Yeah. So, Do they ever ask if there's some way we can join you? I know you did that because you started Yari Connect because of that, but ऐसा are there होता people है। who say that can I come with you? हाँ, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग को ज्वाइन करना है हाँ. with this particular initiative, or we want to be there with you while you do Yeah. this work.
बट द ओनली थिंग आई कैन टेल देम इज कि हम लोग को भी पता नहीं रहता हम लोग कब जाने वाले. हाँ. सो इट इज अगेन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल कि अब अगर कोई है तो हम लोग वी कैन गो एंड स्काउट दोज गाइज वैसा. देयर इज नो श्योर शॉट थिंग कि अब इधर ही मिलेगा उधर ही मिलेगा. So the main thing is how we'll travel together. Yeah. That is the main thing. I think day 25 we had done that thing कि You brought हाँ other थोड़े से लोग. followers एक साथ आके हम लोग फिर वो हाँ. clothes donation drive पे हम लोग गए थे. अच्छा. पर उसके बाद नहीं हम लोग ने किया क्योंकि I think वो काम ज्यादा होने लग गया था. Every day ऐसा लग रहा था और थोड़े बैकअप भी क्रिएट करने थे. तो उसी के वजह से हम लोग ने फिर उसके बाद किया नहीं. But we are planning on a bigger scale if we can do that. Yari Connect or also Papunya ka hisab. We are planning. So are there any other projects that you're working on that you'd like to maybe give a hint of? No, not really. Yes. Achha, okay. हाँ सकाय ने. Is there any other things that you're interested in apart from content creation that you're looking to pursue further? Maybe you ever consider getting into movies or something like that? Movies. You know, usually people who are in content creation, they're like, हाँ, अगला step तो movies ही है. What do you think? Movies का पता नहीं but auditioning for many ads. Oh. हाँ काफी टाइम से हो नहीं रहा है वो अलग बात है. But again we need to try. जब क्योंकि सामने से ही आ रहा है तो क्योंकि आई थिंक मुझे वापस ऐसा लगता है कि बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर दे सी आवर फॉलोअर्स मे बी कि ये कर सकता है तो वो ऑडिशन के लिए वीडियोस वगैरह भेजते हैं. तो मैं भी एक्साइटमेंट में सब भेज देता हूँ बट वो होता नहीं है. बट वन डे मैनिफेस्टिंग हियर. या काफी एड्स ऐसे हो रहे थे. जेप्टो का हो गया, कैडबरी और ऐसे काफी सारे ब्रांड्स थे. तो So would you say then कि content creators के लिए it's easier to get into things like ads and getting into movies, or do you think it's just as difficult सबके लिए? अभी तो मुझे मिला ही नहीं है तो मैं आई थिंक फॉर मी इट्स डिफिकल्ट बट अगेन यू हैव दैट अपर हैंड थोड़ा सा. क्योंकि फॉलोअर्स है आपके पास तो ऑलरेडी ऑडियंस है आपके पास जो आपको फॉलो करती है. बट अगेन योर वर्क शुड बी इक्वली गुड. क्योंकि मैं अभी खुद को ऐसे ही बोल रहा हूँ कि तू सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि तू अच्छा नहीं है मे बी आगे जाके हो सकता है. और मैंने फिर एक बार वो कास्टिंग वाले से भी बात किया था कि क्या सीन है तो बोला कि वो डिपेंड करता है कैरेक्टर क्या है. सो वो भी एक मैंने नहीं सोचा था. मुझे लग रहा था मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ पर वो बोला था नहीं ऐसा नहीं है आपका अच्छा है ऑडिशन बट वो सर को कैरेक्टर कुछ और चाहिए मे बी कर्ली हेयर और कोई तो वैसा. तो मैं बोला ठीक है जब भी आएगा तभी आएगा देख लेंगे. So recently, just like this, we had a guest. His name was. Were you able to check out our YouTube page? No. So we had a podcast with this cricket commentator. Okay. So his name is Muthu. Okay. Really great guy. Who's amazing. So he was really fun to talk to. So I was asking him like, what's your plan? What are you planning to do next? I say off camera we were talking. He's like, yeah, I'm planning to write scripts and all of that. I was interested in going into acting and all this, but the only roles they give me is cricket commentary ka roles. अच्छा. Like you have to do cricket commentary. He said कुछ और तो दो. So like even typecasting is like a big thing. So even I don't know if you also apply. Imagine they just give you content creator का ऐसा role. Again it depends on how you look. मतलब वो लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में. Perception. How you fit in that particular role. Correct. वैसा. तो वो वैसा नहीं चाहिए कि इसमें ही बैठने का है. You should try everything. Everything. मतलब कुछ भी दे दो कर लेंगे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. और आप क्रिएटिव हो तो I think that's even better. Try everything. थोड़ा सा अगर आप क्योंकि that is acting. वो that is not a real life thing कि इसमें मुझे नहीं करने का वैसा. That's a character. If you can play that well, I think great. So going little bit more into more professional side of content creation and everything, where does the money really come from इसमें? So do you get it from brand promos? Is it more in I don't know, where is it really? It's most probably from brands. Okay. For me at least. Okay. Brand works जो भी हम लोग कर रहे हैं फिलहाल Instagram पे तो मेरा तो उसमें से ही ज्यादा आ रहा है. बाकी लोगों का YouTube से भी आता है. अगर अच्छे खासे व्यूज है तो YouTube से भी आएगा. YouTube पे भी ब्रांड्स है. फिर you get offers for maybe you can say series, web series और सब जो है. Correct. तो वो भी एक opportunity मिलता है. If you are a good creator having good followers, you get that also. Again ads जैसा मैंने आपको बोला ads के लिए auditions आते हैं. तो I think that can also add up to things. So एक particular चीज नहीं है. There are many avenues. हाँ पर वो many आने के लिए भी बहुत many मतलब it is not fixed ना. Many हो ही जाता है. हाँ तो वैसा है. मतलब ऑप्शंस काफी सारे हैं बट टू
क्या बोलते हैं उसको क्लिक होने के लिए हाँ. इट टेक्स टाइम मे बी सो Exactly. So it takes too much time. So when a person is starting and they're like, हाँ मेरे को अभी पैसा कमाना है in this, otherwise मम्मी पापा will be like, no, go back, get a job, कुछ stable लाओ, then you think of all this. What should they do? वो लोग कहाँ से start करें? They make the LinkedIn account. हाँ so वो जब भी thought आते हैं तो LinkedIn बनाओ. वैसा हो जाता है ना so yeah So just did that help you when you started फिर? नहीं, कुछ नहीं, मिला नहीं. क्या उससे फिर LinkedIn से? I had gone for an interview with a production house. तो तभी उन्होंने भी वही सजेस्ट किया कि you are doing well. Yeah. If you can continue in this particular thing, I think you'll मतलब अगर आप आगे जाके उन्होंने खुद ही बोला you continue. हाँ मतलब उनको अच्छा लगा वो पर्टिकुलर Wow. चीज़ कि हाँ तू अच्छा ही कर रहा है. If you really focus on this, so I think you will get to what you want. Yeah. मतलब जो फिर आगे जाके तू अपना प्रोडक्शन हाउस खोल या जो भी है. So वैसा था तो फिर मैंने फिर सोचना छोड़ दिया. And see, and Papunna happened after that. Or Right after that. so everything is written, I feel. Written, It yeah. is कि हम लोग को अपना काम करना है बस अच्छा काम करना है. And आप काम जैसे ही समझते हो? You see it as your job? Do you say कि like yeah this is my job तो मैं clock in clock out करता हूँ? Like how do you see it your role? काम मेरा You काम see it क्या as है? a job 9 to 5 हाँ, job? नहीं type? नहीं 9 to 5 जैसा नहीं है. We have a good time I think. मुझे Okay. ऐसा लगता है कि 9 to 5 से I think we are having a good Of time. course, yeah. Because if you see अगर brand आता है हाँ. so the payment is good. Yeah. But again 9 to 5 gives you stability. कि Yeah. वो मेरा आएगा ही आएगा. हाँ. This does not give you stability. Right. So एक रहता है ना कि एक स्टेबल इनकम रहेगा तो यू आर रिलैक्स्ड. Yeah. यू कैन डू थिंग्स व्हाट यू वांट. इतने में इतना ही करने हाँ. का है. इसमें कैसा है पता नहीं कभी आएगा हाँ. कितना आएगा और जितना आएगा फिर तू कुछ भी कर सकता है. हाँ. So it's a risk It's a risk, altogether. yeah. And if you can manage a stable income and हाँ. this side by side, amazing. So is that what you did? You managed a stable income or you just अभी- took a risk? हाँ अभी फिलहाल रिस्क पे ही चल रहे हैं. अच्छा. तो तो hard times हुए हैं आपके? हार्ड टाइम्स हुए हैं. And how did you get through that? नहीं वैसे हार्ड टाइम्स नहीं Hard हुए हैं. times मतलब like you know where it We felt think- like should I think- just switch? हाँ do our something generation else? thinks a lot. So वैसा That's मैं भी true. हूँ. हाँ थोड़ा सा भी think कि अब ये नहीं हो रहा है ये नहीं हो रहा है अभी कुछ आ ही नहीं रहा है तो क्या करे. बट आई थिंक कि कीप गोइंग. Yeah. कभी ना कभी तो आएगा ऐसा सोच के चलते रहो. मतलब मेनली सब आर्टिस्ट वैसे ही करते हैं. Yeah. इफ यू गो टू सी एक्टर्स आल्सो जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स है Correct. सब हाँ. सेम थिंग है. मतलब हाँ. अगर आपको एक चांस मिल गया अगर आप Hmm. चले गए आगे देन आई थिंक देयर इज नो टर्निंग बैक. इसमें Yeah. भी वैसा ही है. एक बार आपने वो बना लिया आपका जो है ब्रांड तो थिंग्स माइट बी गुड. Yeah. अगेन मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो मुझे पता नहीं सिर्फ वैसे ही बोल रहा हूँ. बट जो हम लोग देखते हैं वही बोलते हैं. बट इट इज देयर मतलब थोड़ा स्ट्रगल है. हाँ. अच्छी चीजें भी है ऐसा नहीं Yeah. बोल रहा हूँ कि सिर्फ हाँ, स्ट्रगल हाँ. है. बिकॉज यू आर गेटिंग अ लेजर कि अब कभी भी उठो Yeah. तुझे जब भी कंटेंट बनाना है तभी तू बना सकता है. सो देयर इज लॉट मोर गुड साइड आई फील. सिर्फ इनकम का ही बैड है. ये तो बस सब क्रिएटिव्स का हाँ ऐसे हाँ ही हाँ, होता मतलब है. फिर बाद में पेमेंट भी Yeah. 30-60 दिन उसके बाद मिलेगा. तो आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग विच इज बैड. बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज गुड. So how do you then approach these brands and like constantly prompt them because there are a lot of people वो लोग शर्माते हैं to approach the brands and remind them कि यार give me my Payment money का, मेरा हाँ. जो payment है वो लोग शर्मा जाते हाँ हैं. मैं तो जैसा ही दिन खत्म होता है फॉर हाँ. एग्जांपल 60 दिन खत्म हो गए तो हाँ. आई ड्रॉप अ मैसेज कि पेंडिंग Hey, है. excuse me. हाँ हाँ यू आई थिंक तभी Yeah. शर्मा के क्या करेंगे. मैंने तो काम किया हाँ अपना. मतलब वी हैव डन आवर वर्क और Yeah. अभी पैसा आपको देना ही है वो काम के लिए ही देने का है. उस मतलब ऐसा नहीं कि कुछ आपसे मांग Yeah. रहा हो स्पेसिफिकली तो बस कर देने का मैसेज. And as a content creator there are certain times जब आपको फ्री में भी करना पड़ता है right? So where do you barter. then हाँ when do you have to draw this line? अभी फिलहाल मैं बाटर नहीं करता हूँ. Okay. ऑनेस्टली नहीं करता. और पहले भी इतना नहीं करता था. मतलब इनिशियली किया था. हाँ. जैसे फर्स्ट ईयर में तभी किया था बाटर. उसके बाद नहीं किया कभी. मतलब मुझे ऐसा लगता है समवेयर वो क्रिएटर कम्युनिटी को थोड़ा सा मतलब क्रिएटर कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं ऐसा मुझे लगता है. कहा मतलब बाटर सिस्टम. हाँ बाटर सिस्टम. हाँ. क्योंकि यू आर डूइंग योर वर्क. दिस इज अ वर्क. इफ यू गो Right. टू सी इफ यू हैव Yes, गुड हाँ. फॉलोअर्स इफ यू हैव द एंगेजमेंट आई थिंक यू शुडंट डू बाटर. Yeah. मुझे ऐसा लगता है. You should actually हाँ, ask मतलब what. ब्रांड्स कौन है Yeah. ये डिसाइड करने के लिए कि ये तू बाटर में ही कर. हाँ. ये ब्रांड का इतना वैल्यू तू बाटर में ही करेगा. मतलब मैं वैसा नहीं हूँ. थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव थोड़ा सा
वैसा एक हाँ नेचर है मेरा, तो मुझे ऐसा आई फिर डिबेट, और मैं बोलता हूँ कि नहीं, अगर इतना ही आप फोर्स करो तो हाँ पे मी समथिंग, Yeah. डोंट पे मी द फुल मनी, एटलीस्ट हाफ यू कैन पे ना, जिससे मेरा भी घर चले। मतलब हर एक क्रिएटर का ऐसा रहता है ना, एटलीस्ट सही है, घर पे देने के लिए मुझे कुछ तो कुछ तो चाहिए। चाहिए, आई डोंट वांट फॉर माई सेल्फ, बट घर पे मुझे कुछ तो देना है, तो उसके लिए यू पे मी समथिंग। प्योर बाटर आप बोलेगे, सी इफ यू आर अ ब्रांड कमिंग टू मी, देयर विल बी अ रीजन यू आर कमिंग टू मी, राइट? राइट कि हाँ चल तेरे पेज पे डाल, ऐसा कर ऐसा कर, सो योर आई एम बिगर। हाँ राइट ब्रांड कुछ भी हो, ब्रांड इज वेल सेड, गुड फॉर यू, बट इफ यू आर कमिंग टू मी एटलीस्ट पे मी समथिंग। मतलब प्योर बाटर मत बोलो, ऐसा मुझे लगता है। एंड वो वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था आपका? वर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा नहीं था, बट आई वेयर आपका ये कम्पिटिटिव नेचर आ गया था अंदर से? नहीं ऐसा आई थिंक एक यू डोंट हैव टू नेम आल्सो, बट नोएडा या कोई एक एजेंसी थी उधर की, तो वो लोग, मतलब वो तो पेड ही था, ऐसा भी बाटर भी नहीं था, बट एक पर्टिकुलर कैंपेन था, कोई तो सीरीज के लिए था आई थिंक, तो वो लोग दे वर रेडी टू पे मी 60,000 फॉर दैट पर्टिकुलर वन रील, एंड उन्होंने और भी कुछ बताया था, बट तभी रील का कमर्शियल थोड़ा ज़्यादा था। तो मैंने बोला कि इतने में सिर्फ इतना ही होगा, सो दे वर लाइक ओके। फर्स्टली उन लोग ने बोला कि ठीक है, अगेन सेकेंड डे दे कॉल कि बोला नहीं अभी इसमें ना रील के साथ आपको वो स्टोरी, लिंक इन बायो एंड लिंक विद स्टोरी, ये सब भी करना है। तो मतलब आई थिंक दे डिडंट चेक विद देयर मैनेजर्स फर्स्ट। हाँ मतलब फिर सेकंड टाइम पे चेक किया तो लाइक दे वाला कि इतने में इतना भी करना है, तो मैं बोला नहीं इतने में वो रील का ही कॉस्ट आपको मैं बता रहा था। तो वी लॉक्ड एट समवेयर अराउंड ना 65 वन रील। हाँ मेल पे उन लोगों ने भेजा, वो सब चीजें वापस भेजी जो मैंने उनको बताया था। मैंने नहीं किया, फिर वो 1.5 hour आई वाज ऑन अ कॉल विद देम कि ये हम लोग का डिस्कशन नहीं हुआ था, एंड दे वर ट्राइंग टू कन्विंस मी आपसे गलती हुआ है सुनने के लिए, एंड आई लाइक भाई मी मला माहिती आहे मी काय बोललोय, आणि मी तुला जास्त पण नाही सांगितलंय, जे मार्केटमध्ये चाललंय तेवढं सांगतोय। सो मराठी आता है गुस्से में, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। तर आपका रॉ इमोशन है, आने दो। तो मैं उसको एक्चुअली मराठी में बोल रहा था, उसको भी समझ में नहीं आ रहा था। वो तो नोएडा का है। हाँ, तो उसको भी नहीं पता चल रहा था, वो बोल रहा था क्या बात कर रहे हो। मैं बोला नहीं यही बात कर रहा हूँ कि इतने में हम लोग का डील हुआ था, तो वैसा तो मैंने वो ब्रांड किया ही नहीं था फिर उसके बाद। सी 65 वाज आल्सो गुड, इट वाज नॉट बैड, बट अगेन जो हमने अग्री किया था, द ब्रांड वाज, मतलब वो काउंटर कर रहा था कि आपने ही गलत किया, आपने ही ऐसा नहीं किया था, और वैसा मतलब फिर थैंक यू वेरी मच। सो डू यू थिंक ऐसे होता है जब पीपल डोंट रिस्पेक्ट क्रिएटर्स और इवन क्रिएटिव्स इन जनरल, स्पेशली दीज कॉर्पोरेट्स एंड ब्रांड्स, डू यू सी दैट हैपनिंग अ लॉट? जैसे आपके साथ हुआ था कि आपने ठीक से सुना नहीं, ये सब बोल रहे हैं, होता है, मे बी होता होगा ऐसा, मुझे इतना नहीं पता, सबका नहीं पता, बट होता होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ यही एक अनफेयर लगता है ऑन क्रिएटर्स कि बाबा हम लोग काम अब भी कर रहे हैं, ब्रांड को जब भी चाहिए तब भी हम लोग सब वीडियोस फट एडिट शूट सब री एडिट करके भी दे रहे हैं। पेमेंट के टाइम पे आप अकड़ा चकड़ा के एकदम खींच के रखते कि अभी नहीं, बाद में, आज नहीं, कल परसों, वैसा आई थिंक दैट शुडंट हैपन। क्रिएटर्स को भी थोड़ा सा एक ध्यान में रखना चाहिए कि हाउ यू कैन कम्युनिकेट विद देम पर्सनली। तो आपका क्या टिप्स है टू कम्युनिकेट विद दीज ब्रांड्स, स्पेशली व्हेन यू आर न्यू ना? स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जो आपने डिसाइड किया वो ही करो। आपको अगर वो अच्छा लग रहा है ना, तो आप बार्टर में भी करो। इफ दैट पर्टिकुलर थिंग सूट्स यू और आपको लग रहा है कि हाँ चल मुझे यही चीज चाहिए, तो डू इट फॉर बार्टर, नो प्रॉब्लम। यू शुड बी हैप्पी फॉर योरसेल्फ कि हाँ मैं ये करने का आई एम हैप्पी, मेरे पेज पे एक ब्रांड दिख रहा है, डू इट फॉर बार्टर, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप कंटिन्यूसली करेंगे ना, तो फिर एजेंसीज थोड़ा सा फायदा उठाएंगे कि ये क्रिएटर बार्टर में करते हैं, ये क्रिएटर इतने प्राइस में करते हैं, लॉक कर दो। इफ यू हैव अ प्राइस रेंज ऑफ से 20,000, डोंट गो टू 10,000 फिर, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि फिर वो बाकी एजेंसी सब कनेक्टेड ही रहते हैं, सबका चार्ट, सबका प्राइस रेट सब फिक्स ही रहता है कि हाँ इसका इतना है, इसने ये ब्रांड इतने में किया था। सो आई थिंक ऑल दैट सर्कुलेट्स ओवर द मार्केट। फिर आप ही आपका प्राइस जो है ना वो कम कर रहा है, ब्रांड वैल्यू जो रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। अगेन आई थिंक यू रेज्ड इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस पर्सनल ब्रांड, बिल्डिंग योर ओन ब्रांड वैल्यू। आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब क्रिएटर्स है जो भी है, वो हम लोग करते हैं ना कि चल अरे ब्रांड आ ही नहीं रहा है, तो ये आ रहा है तो ये बोल रहा है कम में कर, तो थोड़ा हम लोग कर भी लेते हैं। बट आई थिंक कभी कभी होल्ड दैट थिंग, एंड इफ यू कैन फाइट, यू फाइट कि भाई मेरा ये इतना ही है, मैं इतने में ही करूंगा,
और नहीं चाहिए तो देन यू लेट इट गो, कोई तो और आ जाएगा ब्रांड वैसा। अगेन इट्स अ रिस्क, जैसा मैंने बोला ना, मेंटल गेम ज्यादा है इसमें, कंटेंट क्रिएशन में मेंटल गेम ज्यादा है। एंड व्हाट काइंड ऑफ मेंटल गेम? ज्यादा स्ट्रैटेजी होता है? स्टे पेशेंट, स्टे स्ट्रांग, हाँ, बी ट्रू टू योर वर्क, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि काम करते रहना, अपने को पता ही नहीं, अपने हाथ में ही नहीं है कि ये वीडियो हम लोग इतना मेहनत करके बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस पॉडकास्ट और इंटरव्यू, हम लोग इतना मेहनत कर रहे, लाइट सेटअप है, इतने कैमरास बैठे, जा रहे आ रहे, हाँ, सब लोग है, अपने को नहीं पता ये जाएगा कि नहीं जाएगा। सो वी आर डूइंग आवर वर्क, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है बात करने को, कैमरा को अच्छा लग रहा है कि वो रिकॉर्ड कर रहा है, जिसने स्क्रिप्ट लिखा है उसको पता है कि हाँ यही स्क्रिप्ट चाहिए, सबका मेहनत है, बट अपने हाथ में नहीं है वो कंटेंट वायरल जाएगा कि नहीं जाएगा। बट यू नीड टू लव व्हाट यू डू। So I think that is the only thing I'll tell to all the content creators. To love what you do. हाँ बस. Because then you'll also fight for what you love. Exactly. Right? Exactly. तो वो सब फिर बाद में आएगा, ब्रांड सब कुछ आता है, the way you want. It is just कि तेरा काम अच्छे से कर। सही है, हाँ। एंड व्हाट इज योर क्रिएटिव प्रोसेस? आपका कुछ है क्या? लाइक सम पीपल आई नो दे सिट ऑन अ टेबल, वो लोग चार्ट पेपर निकाल देते हैं, हाइलाइटर, कलर्स, वो सब टीमे को होल यू नो फ्लो चार्ट जैसा। नहीं, आपका क्या है सिस्टम? मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही आ जाता है, शावर में आ जाता है। हाँ, बाथरूम के टाइम, हाँ, वो बाथरूम में पता नहीं जादू है यार मेरे बाथरूम में, वो उधर सब आइडियाज आ जाते हैं somehow। हाँ, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उधर रहता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। मेरे घर वाले बोलते हैं आधा टाइम बाथरूम में रहता है, तो वो टाइम क्योंकि कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, मैं भी कभी गाना सुन रहा हूँ, तो वो टाइम माइंड बहुत फास्ट चलता है, ऐसा लगता है। तो उधर सब आइडियाज आ जाते हैं somehow। तो आपका वो चैलेंज भी उधर से ही आया था? नहीं, वो वो अच्छी जगह से ही आया था, राइट? दैट वाज जस्ट अ रैंडम, क्या बोलते, कॉन्वर्सेशन में वो निकल गया वैसे। So conversation you were talking, right? You were talking to your friends, हाँ, with my friend, he was and they were telling saying me, ना last 100 days बचा हुआ बाकी है तुम, हाँ, so वैसा। तो just like that, when you come up with your ideas, maybe washroom से, are there any other people that you speak to about your ideas? You say कि हाँ मेरा ideas देख, बोल कि ये चलेगा कि नहीं? Are there people like that in your life? या you run it by yourself? Initially तो family तो मैं बताता था, जब भी फैमिली ड्रामा, महाराष्ट्रियन मॉम की सीरीज जब चल रही थी, तो मैं फैमिली तनिषा या मम्मी को बताता था, तो उनके अलग ही पर्सपेक्टिव, नहीं मुझे ये नहीं करना, ये बराबर नहीं है, बट यू नो ना इट विल वर्क। तो वैसा होता था, यू नीड टू कन्विंस योरसेल्फ फर्स्ट कि भाई ये चलेगा। तो वो थोड़ा सा बैंटर रहता था घर पे मस्ती में कि मम्मी और मुझे एक वीडियो बनाने का, तो मम्मी बोलते मी नहीं करना भाई, मुझे नहीं करने का, बट आई हैड टू कन्विंस कि मम्मा तू कर, ही खूप क्रेजी आइडिया ही जाणार। सो दैट्स हाउ आई थिंक महाराष्ट्रियन मॉम्स का जो मेरा सीरीज था मम्मी के साथ, दैट वर्कड रियली वेल। मतलब आई थिंक 9 or 10 पार्ट्स वी हैड डन, तो वो काफी ज्यादा लोगों को अच्छा लग रहा था। And why do you think it resonated so much with Because people? of the relatability, rawness also, कि हाँ सबके घर पे यही होता रहेगा, सबकी मम्मी ऐसी ही है। और ये आपका शावर थॉट था? हाँ, मतलब वो तो तब भी आया था, मतलब उसमें से थोड़े जो कंटेंट्स थे वैसे कि हाँ चल आज ये करते हैं, आज वो करते हैं, वैसा। तो आपने बोला कि यू हैड टू कन्विंस योरसेल्फ, तो ये ट्रस्ट कहाँ से आता है? हाउ डज समबडी ट्रस्ट देमसेल्फ? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्रिएटिव में कि यू नीड टू ट्रस्ट कि आपका जो पर्सपेक्टिव है और आपका जो ओपिनियन है विल वर्क फॉर व्हाट यू वांट, बट लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव दैट। हाउ यू बिल्ड दैट ट्रस्ट? अगेन आई फील कि यू नीड टू, हम लोग जो बोलते हैं ना, बी ट्रू टू योरसेल्फ। हाँ, क्योंकि आपको पता है आपका काम क्या है, आपको पता है ऑडियंस कैसी है आपकी, और पहले तो उनके लिए करो, और ऐसा टारगेट करो कि वो लोग देखने के बाद ना, वो जो शेयर करेंगे ना, तो वो बाकी ऑडियंस को भी अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि आफ्टर ऑल यू वांट मोर फॉलोअर्स, राइट? जब भी कंटेंट डालते हो, सो यू नीड मोर फॉलोअर्स, तो हाउ विल यू अट्रैक्ट दैट? आपके फॉलोअर्स ही वो और लोगों के पास जाएगा ना, तो दे शुड शेयर दैट। तो वो एक थॉट रहता था कि बाबा अगर तू सोच रहे तो उनके लिए सोच, उसके बाद वो आगे जाना चाहिए। सो आई ऑलवेज यूज्ड टू बिलीव इन माय आइडियाज। मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि हम माय आइडियाज आर बैड और इट वोंट वर्क। You just trusted yourself. हाँ, if you're putting it, अच्छे से करो, शूट करो, अच्छे से एडिट करो, डालो, गया तो अच्छा, नहीं गया तो अगले दिन वापस अच्छे से करो। तो was there ever a time कि एकदम से एक वीडियो फ्लॉप हुआ था and you expected कि it would go really really well? आपको बहुत सेल्फ बिलीफ था? काफी टाइम ऐसा होता है कि हर टाइम अपना सेल्फ बिलीफ ऐसा रहता है कि हाँ ये वीडियो तो जाएगा, क्योंकि मेहनत उस पर किया रहता है ज्यादा, और यू एक्सपेक्ट अ लॉट कि बाबा इसमें इतना चीजें है, मस्त आइडिया है, क्योंकि वो आइडिया आपके हिसाब से मस्त है, ऑडियंस के हिसाब से आपको नहीं पता मस्त है कि नहीं है। सो
काफी टाइम ऐसे हुआ था, और काफी टाइम ऐसे भी होते कि ये आइडिया कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर कि जाएगा, हाँ. डाल दे और इट इज वायरल. राइट. सो इट हैपेंस विद एवरीवन, आई फील, नॉट जस्ट मी. तो यू थिंक कि आप जस्ट चांस लेते हो उस पे? हाँ, तो स्ट्रैटेजी है कि नहीं? आई एम मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है. नहीं, डू यू थिंक देयर शुड बी अ स्ट्रैटेजी? देयर कैन बी स्ट्रैटेजीज, आई फील कि देयर कैन बी स्ट्रैटेजीज ना, कि हाँ चल Yeah. ऐसा करना है वैसा करना है. इफ यू हैव अ फिक्स्ड टीम जो हम देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ. ऐसा है, हैव स्ट्रैटेजीज. पर आप खुद से ही सब कुछ अगर कर रहे हैं वैसे ओवरऑल, तो स्ट्रैटेजीज का क्या करने का है, मतलब दैट्स ट्रू. हाँ. इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, दैट इज अ स्ट्रैटेजी. बिलीव. And you are your team. हाँ, दोस्तों को बोलो. नहीं, देयर आर पीपल, Okay. ऑफ कोर्स देयर आर पीपल, दैट इज द रीजन आई टोल्ड हाँ. यू. इवन पाप पुण्य का हिसाब हाँ हाँ, राइट. कंसिस्ट ऑफ मेनी पीपल अराउंड, जो बैक एंड Yeah. वर्क भी कर रहे थे, जो ऑन फील्ड भी आ रहे थे मेरे साथ, मेरे दोस्त. तो देयर इज अ टीम, बट एज सच हम लोग, मतलब मैं जितना इन्वॉल्व रहता था थिंकिंग प्रोसेस में कि Yeah. आज यही करने का है, वैसा कर सकते हैं वैसा, उतना आई डोंट थिंक कौन करेगा, क्योंकि इट्स माय जॉब अगेन, Right. इट्स नॉट देयर जॉब. आई जस्ट हैव टू टेल देम कि असं करूया तसं करूया. हाँ. बट मेन आपको ही करना है ना, जो Correct. माइंडसेट है Yeah. आपका ही बनाना है कि हाँ बाबा ये होगा. हाँ. सो वैसे तो then you said ना you have to develop that mindset also. तो आप कुछ देखते हो क्या, पढ़ते हो? What do you do? Do you refer to anything? I think आप keep up करते हो खुद से? क्रिकेट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट Really? विद दिस पॉजिटिव Yeah. माइंडसेट. हाँ, For example, आप एक इंस्टेंस बताओ. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर क्रिकेट में आपको पता नहीं, हाँ. आज अगर 100 बना लिए, कल 0 भी आउट हो सकते हो. सो इट्स अ गुड लेवल यू से. Right. तो हाँ, बट आपको हर बार प्रैक्टिस करने के नेक्स्ट डे, कि आज आउट हो गया, प्रैक्टिस करो, कल के मैच के लिए रेडी रहो, प्रिपेयर्ड रहो. हम लोग बोलते हैं ना, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉट एवर कम्स योर वे. Yeah. क्योंकि अगर प्रिपेयर्ड नहीं हो, अगर मैच में परफॉर्म नहीं किया, तो कोई देखेगा ही नहीं, सिलेक्टर्स नहीं देखेंगे. हाँ. फिर चांस कैसा मिलेगा? सही तो है. सेम थिंग लाइफ में, कि बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉट एवर थिंग्स यू वांट टू डू. Yeah. जैसा पढ़ाई हो तो प्रिपेयर पहले से, हाँ. एग्जाम के टाइम पे करेंगे तो इतना नहीं होता है बट इतना नहीं होता है. अच्छा, क्या ए ग्रेड नहीं आएगा, सी ग्रेड आएगा, दैट्स अगेन दैट्स ऑन यू कि आपको क्या चाहिए. Yeah. बट इफ यू प्रिपेयर फ्रॉम स्टार्ट, कि अब थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर करते हैं, एंड में नहीं रखते, देन आई थिंक ए ग्रेड भी आ सकता है. So kids see, you need to Yeah. see life as a cricket match. मैंने वैसा a देखा है, cricket क्योंकि- ground. और क्योंकि हर बार ऐसा होता है, And I think वो बहुत valid है. आप सही तो बोल रहे हो. क्योंकि Yeah. आपका माइंडसेट अगर पॉजिटिव है ना, कि आई नो माई गेम, Yeah. आई नो You व्हाट know आई the हैव. game. Yeah. जब भी अगर बैटिंग करने जा रहा हूँ, हाँ. मुझे पता है कि गेम क्या है. फिर ऑपोजिशन कुछ भी करे, मतलब दैट ऑपोजिशन इज लाइफ. Yeah. लाइफ थ्रोज एनीथिंग एट यू, यू नीड टू You need to. या यू hit नीड a टू. चक्का. हाँ, मस्त है कि करो फिर Yeah. सब वैसा. That's great. So do you have a favorite player? Anything? धोनी इज Oh, समवन. okay. What is something in him that you see in yourself? या आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में सेम है, similarity that you see? ऐसा मैं काफी लोगों को बोलता हूँ, हम लोग का मूल्यांक सेम है, 7. और अच्छा. मेरा 1-6 है Okay. बर्थ डेट, बट इट हाँ. इक्वल्स टू 7 तो ही होता है. न्यूमरोलॉजी वाइज आप लोगों हाँ, का मतलब सेम होता है. 7 वो बोलते 7 नंबर वाले काफी लकी होते हैं. हाँ. तो You think you're a lucky person? या वेरी लकी. What is the luckiest moment you feel you've had in your life? आई थिंक लाइफ इतनी अच्छी है ना, तो आई थिंक मतलब सब चीजें लाइफ में ना काफी सॉर्टेड ऐसा लगता है. हाँ. मतलब इट इज ऑल गुड. मतलब अगर कभी बैड फेज भी था, हाँ. तभी भी हम लोग सोच रहे कि बाकी के चीजें तो है, Yeah. जो दूसरों को नहीं मिल रहे वो तेरे हाँ. पास है. Yeah. सो आई थिंक, और ऐसा काफी चीज है जो मुझे लगता है कि मुझे मिली है, हाँ. हाँ. मतलब मैंने मांगी भी नहीं कभी. Wow. हाँ, तो वो ऑलरेडी लाइफ में मिल रही है. तो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर मी टू कॉल माई सेल्फ लकी. अगेन ये स्पोर्ट्स में भी होता है. हाँ. सो डू यू थिंक स्पोर्ट्स बीइंग इन्वॉल्वड, आप क्रिकेट खेलते थे, डू यू थिंक वो आपको कुछ डिसिप्लिन दिया है? लाइक इन सम वे इट हैज टॉट यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट हैज मेड यू वेरी डिसिप्लिन्ड. डू यू सी दैट इवन करंटली जो आप जॉब करते हो कंटेंट क्रिएशन में? Again, I just the way I told you कि be patient for whatever you Right. want. The results does not matter. हाँ. The process will matter. हाँ. Definitely. क्योंकि वो आपको बनाते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट होता है उससे, कि यू आर प्रिपेयर्ड. मैंने मेरा सब होमवर्क कर दिया, अभी मुझे पता है कुछ भी आएगा तो मैं आई डू द नीडफुल वैसा. तो क्रिकेट हैज हेल्प्ड अ लॉट. डिसिप्लिन इफ यू गो टू सी, फिर कमिंग ऑन टाइम, लिविंग ऑन टाइम वैसा. तो आई थिंक ये सब भी चीज़ें मैटर करती है वैसे.
So if you see maybe apna your content creation right now as a cricket ground, you do need some skill, right, to hit the ball or whatever. yeah. So what do you think are some of those skills that somebody in content creation would need? Pakka, you'll have to have this. You can have passion, but you need to have certain skills. Consistency, Okay. that is one. Does not mean कि हर दिन डालने हैं. You decide your consistency. वीक में 3 बार डालने हैं, 3 बार डालो. That is your consistency. रोज डालने का रोज डालो. But the content should have some value, I feel. मेक श्योर कि वो कंटेंट में कुछ तो वैल्यू रहेगा जो लोग देख के मोटिवेट होए या खुश हो जाए. फिर वैसे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए. अगेन और क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंसी. आई टोल्ड यू, यू नीड टू बी क्रिएटिव. वैल्यू और हाँ. You need to be creative. It's a creative field. It keeps on changing every time. So be creative for the things you do. मतलब at least आपके niche में आप creative रहो. That makes a lot of difference, ऐसा मुझे लगता है. क्योंकि again social impact वाले content काफी लोग बना रहे हैं, ठीक है. But what पाप पुण्य का हिसाब थोड़ा different कैसा था वो, because I think hook maybe या एडिट वाइज कुछ अलग था, या मेरे बोलने का तरीका लोगों से थोड़ा सा लोगों को वो अच्छा लगा. तो आई थिंक दैट इज माय यूएसपी कि मैं जो बोलता हूँ लोगों से आई मेक देम फील कि अपना बना लेते हैं ना वो वैसा अपनापन. हाँ अपनापन. हाँ वैसा मुझे लगता है. अगेन मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आई थिंक वही है, क्योंकि मुझे ऑडियंस जब कमेंट करते हैं बोलते हैं कि हाँ आप जैसा बात करें ना उनके साथ, वो मुझे काफी अच्छा लगता है. क्योंकि नॉट मेनी पीपल डू दैट. तो व्हाट वे डू यू थिंक आप वैसे बिल्ड करते हो, या आपके साथ नेचुरली आ जाता है? आई थिंक वो पहले से वैसा था, क्योंकि आई हैव सीन, ऐसा बोल सकते हैं एज अ किड आल्सो आई हैव सीन, मतलब जो लाइफ का ग्राफ है ऐसा ही है. ऐसा ही रहना चाहिए. मतलब ऐसा आएगा फिर भी चलेगा, आई मैनेज. बट मतलब लो से चालू किया था. ओके. लो से चालू किया, नॉट स्ट्रगलिंग नहीं बोल सकता हूँ, बट आई हैव सीन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ. जैसे स्टार्टिंग में हम लोग 1 रूम किचन में रहते थे, फिर भी शिफ्टेड टू से 2 BHK नॉर्मल सोसाइटी, और नाउ अ वेरी गुड सोसाइटी वैसा. सो आई थिंक मैंने सब देखा है ग्राउंड लेवल पे हाउ इट वर्क्स, एंड दैट कीप्स मी हम्बल एवरी टाइम. कि चौल में फॉर एग्जांपल लोग कैसे रहते हैं, उनके डिफिकल्टीज क्या रहेंगे डे टू डे लाइफ में या समथिंग लाइक दैट. तो वो सब मैंने देखा है. अगेन माई मदर एंड माई फादर बोथ, दे हैव कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड, यू कैन से. दे हैव सीन द स्ट्रगल्स मोर देन मी, क्योंकि उन्होंने तो मुझे सब दिया था. बट व्हेन दे शेयर देयर स्टोरी स्ट्रगलिंग डेज के, जब पहले के स्टोरी कि कुछ भी नहीं था तभी तो. सो आई थिंक दैट मोटिवेट्स मी, एंड मुझे एक अंदर है वो रियलाइजेशन की हाउ टू बी हम्बल, हाउ टू बी डाउन टू अर्थ, हाउ यू कैन see the problem which people are facing. Most of the time हम लोग अपने में ही बिजी रहते हैं कि माझाच प्रॉब्लेम सगळ्यात मोठा, मेरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा. वैसा बहुत सेल्फिश टाइप्स हो जाता है. अपने हाँ सेल्फ ओरिएंटेड. हाँ वैसा. तो आई थिंक ये छोड़कर अगर आप दूसरों के बारे में सोच सकते हो थोड़ा सा, तो आई थिंक योर पर्सपेक्टिव विल चेंज फॉर लाइफ. कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है. So, you know, also one of the things that come with, I think, growing up, seeing all this, right, middle class, I could really relate to you in a way, because my parents also, they started with nothing. They were sharing a room in Coimbatore, and it was one single beautiful room. Place. And yeah, beautiful place, first of all, yes. And then they slowly moved up somewhere. And I feel personally, I have grown up with a lot of fear कि मुझे भी कुछ करना है to maintain that. They have worked so hard. Do you ever feel that as well? So my mom tells me कि पापा ने इतना किया है from scratch. You have to at least maintain it or take it further. तो ये मेरे दिमाग में जैसा just the way you told me. तो as a creative आप how do you balance that? You know, जो fear है of I need to be stable, and also कि us creatives also it's very difficult to find different streams to be stable. How do you balance that as a middle class person? Again, I feel कि अभी ना एक mindset वैसा भी है ना कि अभी तो है, everything is good at home, touch wood, everything is good. So वैसा कुछ fear नहीं है. It is कि मैं मेरा creative बन सकता हूँ, दिखा सकता हूँ. I can take my risk as of now. Later on मुझे नहीं पता if the same things might happen or not. क्योंकि that is life again. You can't be sure about anything. Exactly. वैसा. But as of now it is गुड. तो मुझे ऐसा लगता है कि नाउ आई शुड डू समथिंग कि ये इयर्स में ना थोड़ा सा
Yeah. अगर इधर मैं आ जाऊँ तो बाकी का जो मेरे प्लान्स है वो मैं कंप्लीट कर पाऊंगा. जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये मेरा सपना है, ये सपना है, वैसा. So it comes from just dreaming. आप बस हाँ. ड्रीम करते हो कि हाँ वो तो है, पहले से ही था कि कुछ तो करना है. मतलब बचपन में था ना, इंडिया खेलने का है, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का किड. तो अभी भी है कि इफ नॉट क्रिकेट देन समवेयर और द अदर प्लेस, अगर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाऊँ किसी भी चीज के लिए, देन दैट वुड बी ग्रेट. And I think most of the viewers also who are watching, and even most of India's population is mostly middle class, right? So these are people with very big dreams and they are scared to go towards them. So what would you say to people like this? You know, you're in the same place as well. तो आप क्या बोलना चाहते हैं? I can tell them कि whatever comes to you, the opportunity जो भी है, accept that thing. Don't let it go. I can tell that. Be good with the family, spend time with the family, friends. जो भी है, मतलब आपके आजू बाजू में जो लोग हैं ना, be nice to them. क्योंकि अभी आज के जिसमें ना लोग अच्छे नहीं है एक दूसरे के साथ. लोग भूल जाते हैं रिश्ते सब. मतलब ऐसा है ना कि दिखाते कुछ और होते कुछ और है. Correct. तो वैसा मत करो, एटलीस्ट विद योर फैमिली. मतलब कितने सारे एग्जाम्पल्स है सीरीज में पता चल रहे थे, आ रहे थे सामने की people, the children have left their parents for property और पैसे और वाइफ और हस्बैंड जो भी है. तो वैसा मत करो. अपने पेरेंट्स के साथ तो मत ही करो वैसा. फ्रेंड्स और सब तो आते जाते रहेंगे, बट होल्ड ऑन टू योर क्लोज फ्रेंड्स हु हैव हेल्प्ड यू फ्रॉम, मतलब जो स्क्रैच से आपके साथ है, होल्ड ऑन टू दोज गाइज एंड ग्रो टुगेदर. I love that. I love कि आपने नहीं बोला कि no hustle, ये करो, chase करो, ये करो, वो करो. No, you just said कि hold on to the people who are dearest to you. मतलब क्योंकि देखो कभी कभी आप इधर रह सकते हो, बट मेक ऐसा माइंडसेट भी बना के रखो, इधर आएंगे ना तभी भी ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए. क्योंकि वो जो लोग हैं आपके साथ है ना, दैट इज एवरीथिंग. राइट. इफ यू हैव देम इधर और इधर दोनों टाइम पे ना, देन दैट इज द बेस्ट थिंग आई फील. That's amazing. So have you had some sort of experience का में you were just like I'm so grateful कि ये लोग हैं मेरे साथ? कोई ऐसे टाइम हुआ है that you can walk people through? है, जैसे मैंने आपको बोला, फैमिली इज ऑलवेज देयर फर्स्टली. कि फैमिली ने काफी सपोर्ट किया. जब भी लॉकडाउन से मैंने जैसे आपको बताया था कि मुझे कुछ पता नहीं था इस फील्ड के बारे में, तो दे वर लाइक कि तू कर, क्योंकि तू जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा, वी हैव दैट गारंटी, तू कर. तो दे हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. देन फ्रेंड्स ऑल्सो. ऐसा टाइम रहता है ना, अपने को नहीं लगता कि वी कैन डू दैट, तो वो लोग रहते हैं कि जो मोटिवेट करते हैं. तो मुझे भी ऐसा है कि अभी तो मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हूँ, पर जब भी बनूंगा तो सभी दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ तो करना है. मतलब जो भी मेरे साथ थे पहले से, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना है. आई एम स्टिल कनेक्टेड टू एवरीवन. और एज अ क्रिएटर, एज अ पर्सन ना, मैं ये भी सोच के रखा हूँ कि अरे ये दोस्त ना तभी था जब भी कोई नहीं था, इसने वो वीडियो शेयर भी किया था, ये भी किया था, वो भी किया था. वेरी स्मॉल थिंग आई एम टेलिंग यू. बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट यू आर एबल टू सी कि हाँ वो लोग शेयर भी करते हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं. मतलब इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद हिम. उसका कुछ नहीं होने वाला उससे, वो स्टोरी पे डाल के, बट इट गिव्स यू समथिंग. मतलब अंदर से रहता है ना, चल एटलीस्ट दे आर सपोर्टिंग व्हाट ये बंदा है तो मैं कर सकता हूँ वैसा. एंड डू यू थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक क्रिएटिव के लिए वो सपोर्ट? क्योंकि हमारे लिए तो स्टेबिलिटी इज वेरी इधर उधर. तो यू नीड टू हैव गुड सेट ऑफ पीपल अराउंड यू. यू कैन अंडरस्टैंड योर वर्क एंड यू कैन से कि always motivate you for something, even if it is not working in your favor. They are there to motivate you in some or the other way. वैसा लगता है कि रहना चाहिए. So were there people जब पाप पुण्य का हो रहा था, that issue that was happening, no, कि views नहीं बढ़ रहे थे, and everybody was telling you to switch, were there still some people that said no, keep going, ये चलेगा? There is my one of my friends, Tanmay. So he was always there with me. Okay. Because he used to shoot the video, and I used to be there in the video. So एक 20 दिन हुए, और तभी ऐसा ना बारिश भी था, तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर अस टू गो आउट एंड शूट वो बारिश में. तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट तन्मय यूज्ड टू ऑलवेज बी देयर. आई फील का वहाँ, मतलब अगर मुझे लग रहा है ना कि 7-8 दिन के बाद तन्मय नहीं हो रहा है ये चीज़, क्या हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं, करत रहो. सो दैट सपोर्ट, मतलब वो हमेशा याद रहेगा. वो जर्नी जो मैंने और उसने देखा है ना, मतलब उसके बाद काफ़ी लोग आ गए तन्मय के बाद. मतलब आफ्टर ही कुडंट कंटिन्यू,
आफ्टर 50 डेज के बाद उसको बीमार पड़ गया था वो. सो देयर वर मेनी पीपल, बट वो जो फेज था ना जब भी कुछ भी नहीं हो रहा था, जो फेवर में ही नहीं चल रहा था कुछ भी, पर तभी वो थिंग मोटिवेट बहुत ज्यादा किया कि हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना, उसका अच्छा हो रहा है वो देख. वैसा एक सोच है. And वैसे is there somebody who you want to collaborate with later? Some new person that you think हाँ I think मेरे साथ ये कुछ तो दोस्ती रहेगा. If we meet, मतलब we might become friends. दोस्ती मतलब creatively. A person who I want to collaborate with. Yeah. And also you think you'd be really good friends with. Good ये creative friends. space में. You ever feel like that? अभी फिर कोलैबोरेशंस का ना ऑनेस्टली पहले बहुत होता था जब भी हाँ. कॉमेडी कंटेंट बनाता था. अभी नहीं होता है एज सच. मतलब Okay. इतना पेज पे देखोगे भी नहीं कि कोलैबोरेशंस है. Right. हाँ. काफी कम है. पहले भी काफी कम थे, लिमिटेड लोग ही थे. कोई रीजन है उसके लिए कि you are more focused अपने आई डोंट नो, productions ऐसा पे? कभी हुआ. आई डिडंट फील क्या बोलते हैं इंक्लूडेड इन दैट सर्कल ऑनेस्टली. So you think there is a circle in content creation? हाँ, ऑफ कोर्स. And वो region based होता है, city wise होता है, how is it like? नहीं वो नहीं पता, बट सबका अपना अपना एक फेवरेट रहता है ना. हाँ. कि मेरा ये फेवरेट है, ये फेवरेट हाँ. है. सो मे बी उसके वजह से रहेगा. Okay. तो मुझे कभी ऐसा इंक्लूडेड फील नहीं हुआ, और मे बी In the मैंने creative इतना space. और मे बी मैंने इतना एफर्ट नहीं डाला रहेगा. Okay. ऐसा भी हो सकता है. तो मैं इसके लिए वो सोलो अपने फैमिली के साथ बनाता था या फ्रेंड्स के साथ वैसे ही करता था. Wow, yeah. पहले करते थे हम लोग कोलैबोरेशन, पर उसके हाँ. बाद वो इट्स जस्ट वेंट अवे. ऐसा हुआ. I think that's great कि आप अपने ही creativity पे हाँ. करते हो. मतलब अभी ना आई हाँ. डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन Dependent on समवन. anybody's. एंड द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट क्रिएटिंग सोलो कंटेंट इज यू गेट द आइडेंटिटी. Yes. यू आर नॉट टैग्ड No. कि ये इसके साथ है, ये उसके साथ रहता है. नहीं. ये मयूरेश है, म्यूजिक वाइन्स है, हाँ. पापुन्य का ये सब वाला है. सो यू हाँ. हैव योर ओन आइडेंटिटी Yeah. कि ये ऐसा वीडियोस बनाते हैं. See, सो दैट yeah. इज द ग्रेटेस्ट थिंग वंस इट वर्क्स. I think this reminds me of like Mr. Beast as well, like when he had started. Okay. So are there any other creators that you look up to? ये space में, Yes. media space में. मीडिया स्पेस में भुवन Role बाम. model. भुवन बाम was one of those person or creator you can say. कि I should like him as a person, I have to like him. Okay. मतलब What exactly वो is उसकी the सॉन्ग्स, वो भी फनी वीडियोस बनाता था. सॉन्ग्स Yeah. यूज्ड टू पुट अप. तो वो सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती थी. फिर जब भी मैं आई गॉट अ चांस टू मीट हिम उसके प्रीमियर पे. Oh. तो ताज़ा खबर आई थी. हाँ. तो तभी हम लोग मिले थे फर्स्ट टाइम. तो हाँ. दैट ऑल्सो टच्ड मी अ लॉट कि एज अ पर्सन भी इज ग्रेट. Wow. सो आई थिंक क्रिएटर कम्युनिटी में आई फील भुवन बाम. You respect him a lot. या You guys are still in contact, anything? I think Contact he's नहीं out है. of the space अभी, right? कॉन्टैक्ट वैसा नहीं है, हाँ. बट मिले हैं. Okay. पर कांटेक्ट भी हो जाएगा, अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स. Manifesting again. Are there any other, people that you've met in the space that really impacted you? Any other meetings that you've had like this? तो जैसे मेटा के क्रिएटर डे पे काफी क्रिएटर्स का मीटअप काइंड ऑफ हाँ. स्पेशल डे था फॉर ऑल द क्रिएटर्स. हाँ. तो आई थिंक तभी काफी क्रिएटर्स से मिले हाँ. थे फर्स्ट टाइम. सो तभी लॉकडाउन में सुशांत गाडगे करके एक क्रिएटर, मराठी क्रिएटर है. तो तभी मैं उसके फुल वीडियोस देखता था बैठ के, और काफी मजा आता था. हाँ. तो तभी उसको जब भी मिला तभी काफी मजा आया था. नाउ वी आर कनेक्टेड. वी ऑल्सो शॉट अ रील आफ्टर दैट 1 साल के बाद. तो वो एक बंदा था जो मुझे काफी अच्छा लगता था, सुशांत गाडगे. तो वैसे थे. फिर सौरभ घाटगे करके एक है, जस्ट नील, फोकस इंडियन, ये सब मराठी क्रिएटर्स के लिए, बिकॉज दे समहाउ क्या बोलते हैं उसको, कंटेंट उन्होंने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डाला इनिशियली लॉकडाउन के टाइम पे. दे कैपिटलाइज्ड प्रीटी वेल. क्योंकि बाकी इतना तभी कंपटीशन नहीं था. आई फील कंपटीशन उसके बाद आया, बट दीज गाइज हैव बीन क्रिएटिंग कंटेंट तो उन्होंने बेस से किया था. हाँ, मतलब हाँ, वो लोग ऑलरेडी कर रहे थे कंटेंट क्रिएशन. ओके. तो आप बोल रहे लॉकडाउन से पहले. हाँ, so ऐसे काफी लोग थे ना. हाँ. तो आपको लगता है कि लॉकडाउन के बाद ही ऐसे बूम हुआ था? हाँ, मतलब दे कैपिटलाइज्ड थिंग्स प्रीटी वेल, वैसा. Okay. So there are many people as such, but these guys I remember. Amazing. So I just want to wrap up with a few challenges. Okay. What were we talking about?
प्रतीक्षा प्रश्न पत्रिका प्रश्न पत्र प्रश्न पत्र पत्रिका हाँ पत्र प्रश्न हाँ, पत्रिका पत्र पत्र आर यू नाही. रेडी प्रश्न पत्र काय प्रश्न पत्रिका ना हाँ. हाँ प्रश्न पत्रिका मी कन्फ्यूज झालो. Okay, so I'm going to show you 3 images. Okay. ये it runs around meme circles में या you must have seen Instagram पे. आपको एक caption डालना है इस पे Instagram caption. इंस्टाग्राम हाँ. कैप्शन वैसे तो who puts your Instagram चैट captions? आप ही जीपीटी. तो आप भी यूज करते हो चैट जीपीटी. हाँ हाँ मतलब आई फ्रेम अ लाइन हाँ. which is in my mind and I tell ChatGPT बाबा frame it well and give me 4-5 options उसमें अच्छे से. तो फिर वो जो बेस्ट ऑप्शन है फिर वो सिलेक्ट कर लेता हूँ. आप क्या prompts डालते हो? I put make me sound Gen Z. नहीं मैं वही डालता हूँ जो मुझे चाहिए. अच्छा. फॉर एग्जाम्पल मुझे जो फील हाँ. हुआ वो वीडियो से वही पूरा डाल देता हूँ. हाँ. फिर उसको बोलता हूँ मेक इट शॉर्ट 5 to 6 words, गिव अ हुक, इंस्टाग्राम है वो सब वैसा करके डाल देता हूँ. फ्री लेबर है हमारे हाँ लिए. हाँ that's great. Okay, let's move on. Sorry, distracted. So this is the first image. Are you I have to ready? make a caption. Yeah, you have to give us a caption. एक ही line. Okay. कर सकते हो क्या? पता नहीं. Relatable. ट्राई तो कर ही सकते हैं. Yeah, it's very memeish. तो relatable should be fine. दिखाओ Okay, this is the यार. first. अच्छा my favorite pose actually. Yeah, हाँ. this is for everybody on camera. Okay. तो इस पे क्या कैप्शन? Give me one caption. Me after completing a 100-day challenge. Okay, do you see that? हाँ कुछ Shit. नहीं ऐसा कंप्लीट Okay. नहीं दिखा बट Next वाला. हाँ, हाँ, हाँ. बस 3 ही है हाँ. अच्छा that's fine. ये वाला. Whenever I open a selfie camera. Oh, yes. हाँ. Yes. मैं ही भूल गई ये ऑर्डर क्या था. हाँ. हाँ अभी बीच में. बीच में. Oh, okay. ये वाला. मी कोर. आपको पता है कौन सा मूवी से? हाँ ऑफ कोर्स. हाँ. पीके. पीके. हाँ ना. पीके ना. हाँ पीके. मैं पीता तो नहीं हूँ पर अगर पीता था तो ऐसा ही ड्रेसिंग होता था होली के टाइम पे. इसको क्या कैप्शन दूँ? Go watch my holy vlog. My last YouTube video. नहीं मैं तो काफी डिसेंट था. क्या कैप्शन दे सकते हैं इसका? If I was Ranveer Singh for one day maybe. Oh. You have any favorite actors? Actor is Shah Rukh Khan. हाँ. And favorite as a celebrity if you go to see then Dhoni. Oh, okay. Let me tell this on camera only. Yes. मुझे ऐसा है कि जिंदगी में एक बार धोनी से एक बार मिलने का है. तो if this happens तो please guys make this clip ऐसा. There's so many manifestations इधर. भाई The chair is strong. I'm manifesting this from a A very long long time. time. Very long. बचपन से I think. बचपन से नहीं but after 2011 वर्ल्ड कप और उसके Oh. बाद से. So So before Dhoni, who was like your Sachin. icon? Oh, Sachin. Okay. सचिन एंड धोनी बस ये धोनी से तो मिलना ही है. सचिन एटलीस्ट मतलब मैंने हाँ. सचिन से मिला हूँ. सचिन पाजी. कैसा था? ऑटोग्राफ लिया था. हाँ तभी तो तभी पर काफी छोटा था. बट एटलीस्ट धोनी से मुझे मिलके थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए बात करना है बस. Okay. I have a rapid fire round. We'll wrap up with this. Perfect, पक्का हाँ perfect, पक्का. पक्का. Okay. So one Instagram trend that you love. रैपिड फायर. क्या ट्रेंड अभी ट्रेंड फिलहाल देख ही नहीं रहा हूँ मैं. तो नहीं होता है क्या फॉर यू पेज पे पे- आपका ट्रेंड क्या ट्रेंड था यार ऐसा. वो जो पुराना भी हो सकता है. हार लो यार पहलाच रैपिड फायर है. आप कॉफी की इफ यू वर विद दैट कॉफी विद करण यू लूज वो हैम्पर जो भी है. ना. हाँ. Can we start once again? हाँ ठीक है ठीक. Different question maybe. Okay, okay. If you weren't a content creator, what would you be doing If you- instead? If you were not a content creator, हाँ. what else you would be now? Maybe again something in cricket or sports background. Oh, okay. And what is harder, hitting a 6 under pressure or making a reel that blows up? Making a reel that blows up. Okay. And your biggest flex moment in life so far? Flex moment in life. I think the YouTube play button when I received. कौन सा वाला मिला आपको Silver. recently? Recent नहीं काफी टाइम हुआ but हाँ. that was something which I didn't expect. तो वो फ्लेक्स करने में ज़्यादा अच्छा उन्होंने फ्रेम करके रखे घर पे. Oh, wow. Okay.
And one piece of advice for someone who wants to start content creation but is scared to start. जस्ट स्टार्ट, मतलब ज़्यादा सोचो मत, करो, देखो, ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करते रहो और कंसिस्टेंट रहो, और आपको वो काम अच्छा लगना चाहिए. सो दैट इज द ओनली थिंग. And then your next biggest goal in life. Next biggest goal, again for me also, being consistent is something which I look forward to. क्योंकि Okay. हाँ, अभी चैलेंज खत्म हो गया, हाँ. तो कंसिस्टेंट नहीं है उतना, तो वो कंसिस्टेंसी वापस चाहिए. सो दैट इज द गोल. एंड अगेन यारी कनेक्ट, जैसा मैंने आपको बताया हाँ. था, तो मेक Things थिंग्स like वर्क that. फॉर दैट यारी कनेक्ट हाँ. एज वेल. सो No materialistic goal. मटीरियल्स नहीं, सब है, मैं बोला ना आपको, See, भगवान का दिया सब कुछ है. see, this is Mayuresh for you guys. This is what he is. आई थिंक पर And I think it's great. आई थिंक काम करेंगे तो सब मिल जाता है. और हाँ. कंटेंट क्रिएटर्स को वैसे भी मिलता है, फ्री का ट्रैवल वेकेशन हो या, और वो लोग एडमिट भी नहीं करते हैं. हाँ मतलब हाँ. मिल ही तो जाता है अच्छे से, तो और क्या हाँ. चाहिए, मतलब और क्या ही चाहिए. घूमने का, खाने का, पीने का और काम करने का. I think that's a great way to end. और क्या ही चाहिए if you're a content creator. Yeah. So thank you so much, Mayuresh. very much. Before you leave, but I still want you to give one single message you have to the youth in general. For the youth, respect our parents, make good friends, have good company. That's the thing कि don't go on the wrong track. Okay. मतलब क्योंकि ये कॉलेज डेज में ज़्यादातर होता है कि हम लोग गलत कंपनी चूज करते हैं, एंड देन फिर लाइफ Right. गोज अवे. हाँ. एंड डेवलप अ स्किल, कुछ भी हो, एक हॉबी, स्किल, मास्टर दैट. एटलीस्ट वो पर्टिकुलर थिंग में आप अच्छे होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. एंड बस दैट्स इट. फोकस ऑन योर वर्क. लाइफ इज गुड. So you heard it from Mayuresh, Yeah, guys. yeah, yeah. Thank you so much. It was so great speaking to you. I didn't even know, हमने off camera भी बात किया था. We didn't know कि time is gone. We have crossed the time limit. Producer is mad at me. So we will be wrapping up. Thank you so much, everybody. Thank you to the crew. Thank you to the audience who's watching. So like, comment, subscribe. Yes, we are ending it. Thank you so much. Like, share, comment, subscribe. Like, share, comment, subscribe.